So I welcome all of you who has taken time to join this very light program. So on behalf of Jain Ventures Group and Bharti Global MSME Forum, I welcome all of you. So just to briefly give the background about Bharti Global MSME Forum. Bharti Global MSME Forum is platform established with the prime objective to give a boost to micro, small and medium enterprise. This forum evaluates various schemes run by the government from time to time, make aware the existing as well as the aspiring entrepreneurs about the business opportunities arising out of such schemes and ensure their implementation of the micro level. It provides one-stop solution to all the problems faced by the sector. It provides services such as SHRR, resource management, cost reduction, strategic planning, and fundraising for small business. And apart from our flagship theme is how we can transform our MSMEs into the MNCs. And the parent company who has initiated this particular vertical is the Jain Ventures Consulting Private Limited. So basically the contest of having this particular company, Jain Ventures, is that India has been the breeding ground for ideas and entrepreneurship. Startup activities are at all-time high, recently keeping the huge growth of potential of startups, MSMEs, small sector, and real estate. The government of India is taking various measures to support these sectors. There have been numerous policies and initiatives focused on them that have been announced in the recent past, aimed at sectoral initiatives supporting new ventures at different stages of their growth. But there is still a lot of to be done. So that is the genesis behind creation of the Jain Ventures Consulting Private Limited. So today program, just to share the today program overview. So our today program overview is primarily on basically three things. One, understand how to dig deep and find out what is stopping you from growing much faster, possibly fastest in your industry. Then understand how to dig deep and find out what is stopping you. I think that is repeated. Repeat okay. Okay. And then would you also like to get freedom from daily operational firefighting and fully focus on growth drivers that propel your business growth at jet speed? Now, before I hand over further proceeding to our moderator, Dr. Amita Srivastava, so I have my privilege and pleasure to share her brief profile with the audience. Dr. Amita Srivastava is presently holding position of the director at Branchil Center for Research, Training and Consultancy, BCRTC, Ghaziabad, India. She is throughout gold medalist and is a well-known expert in management philosophy, strategic management, human resource development, quality systems, and human values. She has worked for 24 plus years in the areas of research, training, consultancy, teaching, and administration in management. Dr. Amita is in advisory panel of prestigious the Center for Applied Social Sciences Research, CSSR. She is an active member and office bearer of various professional groups like Ghaziabad Management Association, Higher Education Management Forum, Management Teachers Consortium, Punjab Management and Commerce Education, Worldwide Management Consultants, Professor in the Management Studies, HR and Talent Management Executives at Harvard Business Review. So now I hand over you, Dr. Amita, to take the proceedings forward. Thank you, Mr. Jain. Good evening, my august audience. It is indeed an honor to be moderator with this elite group. I know you all are waiting eagerly for life-changing lecture this evening. Before we get started, allow me to have a quick introduction of our amazing team. Now, let me introduce Mr. Vinay Agarwal. The keynote speaker for the day. Mr. Agarwal is a graduate of IIT Kanpur and IIM Calcutta. He is a business growth
Mr. Agrawal is a graduate of IIT Kanpur and IIM Calcutta. He is a business growth, strategy, and turnaround expert. He has over 30 years of experience in the corporate sector, with 18 of these being as a CEO in Indian business groups and MNCs. Mr. Agrawal founded PGT Partners of 2011 to help business owners as much as to double their profits in 1 year and or triple their sales in 3 years. He has consulted with owner managed companies to help them achieve breakthrough results in sales and profits. He has helped business owners to achieve results by helping build all around capabilities in areas such as go to market strategies, sales management, on time deliveries, improved capacity utilization, supply chain management to prevent stock outs while keeping inventories in control, distribution network management, and project management. Mr. Agrawal has been associated with Stockholm School of Economics, Executive Education, IIM Calcutta, IIM Indore, and Lucknow, and Symbiosis Group of Institution as visiting faculty. He is a speaker on business growth and scaling, business turnaround, and marketing. He recently authored and published a mini book which is entitled Are You Getting the Growth You Truly Deserve? 7 fail-proof strategies that guarantee 2x revenue in 18 months, and which came out on December 2021. During his masterclass today, Mr. Agrawal will explain to how to dig deep and find out what is stopping your business growth, and then how to build your own highly reliable business growth engine with his easy to implement 7-step framework. One key element of this is to be able to manage your business operations by spending 1 day a week on that and free your time to pursue business growth. Mr. Vinay, we just can't wait to have intellectual feast with your deliberations. Coming next is Mr. Anil Kumar Jain. Mr. Anil Kumar Jain is an MBA in marketing and BG in computer programming and system analysis with rich and diversified experience of 35 plus years in various fields, for example, computer programming, system analysis and design, barcoding, process automation, and consulting. He worked in India and overseas with proven track record on how to introduce and implement barcode technologies to automate process in any industry. He played an important role in introducing barcode technology in India. He is managing various business entities. He is managing director of Best Barcode System Private Limited, BBSPL. This organization is promoting users of barcode, RFID, and IoT related hardware through pan-India network of dealers. BBSPL is authorized to market and service product of many MNCs like Zebra, Honeywell, DSC, Argox, Cognex, Chainways, Microscan, etc. He is chairman of IoT Technology LLP, which is software development company busy providing end-to-end industrial solution, be it WMS, work in progress, point of scale, inventory control, asset tracking, etc. Now, let me introduce Mr. Pankaj Jain, an accomplished CMA, CS, AMT, alumnus of IIM Calcutta, and certified corporate director with vibrant spirit of entrepreneurship, having over 32 years of diversified experience across wide spectrum of industries while working at India and overseas, with proven track record of turning around the financial position of several companies through dynamic initiatives and helping them to achieve exponential growth even in challenging times. Associated with many socio-economic initiatives in various capacities, including founder, president of Indian Society of Management Accountants, Infra and Real Estate Foundation, Young Entrepreneurs Network, Indian RERA Forum, Bharatiya Global MSME Forum, and is mentor to many startups with the objective of helping them to achieve sustainability and scalability of their business. Now I invite the dynamic, proficient, and visionary Mr. Agrawal for welcome address.
Sorry, Dr. Amita, I think I have to give the welcome address. So there is a small correction. So, okay, no problem. No problem. Yeah, Mr. Jan. Okay. So, आप सभी को मेरी जय जिनेंद्र, सभी को सादर नमस्कार. A very great evening to all of you. तो पहले तो मैं सब लोगों को आपको बहुत एक शुभकामना देना चाहूंगा, जो भी हमारी ऑडियंस है, कि जैसा आप सब लोगों को पता है कि अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो हमारी कंट्री जो है आज 5th पोजीशन पे पहुंच गई है. अभी पिछले कुछ साल पहले ही हम लोग 11th पर थे. तो ये हमारे लिए बहुत ही एक गर्व की बात है कि हम बहुत कम समय में जो है 8-11 से जो है वो 5वें स्थान पे आ गए. बहुत जल्दी हम जो है आगे और भी इस तरफ जो है बढ़ रहे हैं. तो बहुत जल्दी हम तीसरे, दूसरे और उससे पहले चौथे जो भी हमारे मार्क है उस पर आएंगे. तो इकोनॉमी की बात करें तो वी आर ऑन दी वेरी वेरी हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी. तो बिकॉज व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू, बिकॉज जो विनय का आज का प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं इसी कॉन्टेक्स्ट से है. क्योंकि जब हम एक मैक्रो लेवल पे बात करते हैं कंट्री की इकोनॉमी की, स्टेट की इकोनॉमी की, या कोई एक बहुत बड़ी एक इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमी की, तो उसमें जो एक रोल है एमएसएमई का, उसके ऊपर जो रोल है कि डिजिटल कंपनीज का, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर वो कंपनीज अपने को ग्रो नहीं करेंगी तो जो हमारा ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव नहीं कर सकते हैं. सेकेंडली, मैं एक और दूसरा चीज शेयर करना चाहूंगा और सब लोगों को एक बधाई देना चाहूंगा कि हमारी कंट्री को G20 23 की जो है हमको होस्ट करने की जो है वो अपॉर्चुनिटी मिली है, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है. तो वो भी एज ए इंडियन मुझे लगता है कि हमारी कंट्री के लिए वो बहुत ही एक प्राउड की बात है उसमें. तो जस्ट कोई टाइम बहुत ज्यादा नहीं लेते हुए, मैं जो उसकी की थीम है, उसके जो कॉन्टेस्ट है, उसमें उन्होंने 5 एक उसमें एरिया को लिया है, जिसमें जो है जो मेन जो हमारा कॉन्टेस्ट सेट करा, मेन जो 5 एरियाज है, तो वो मैं क्विकली शेयर करके देन आई विल कंक्लूड माय एड्रेस. तो उसमें जो 5 उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो थीम में लिए हैं, कॉन्टेस्ट जो सेट करा, तो पहली बात तो है कि जैसे एक जो लोगो बनाया है, वो लोगो बहुत ही जो है हमारा एक आर्टिस्टिक हमारा जो है, तो इंडियन ओरिएंटेड और भारत ओरिएंटेड जो हमारा विजडम है उसको वो शो करता है. तो एक फ्लावर को लेके जो है वो सारा का सारा वो बनाया गया है. तो अगर आप लोगो देखेंगे तो यू विल फाइंड lot of Bharatiya touch in that kind of logo. So that is a one apart visible thing. लेकिन जो इंटेंजिबल थिंग है, जो 5 चीजें जो है जिसके ऊपर जो है फोकस करा जाएगा, इंडिया ने जो कॉन्टेस्ट सेट करा है, तो वो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली. तो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है क्लाइमेट कंट्रोल. डिस्पाइट इंडिया इज नॉट ए वेरी डेवलप्ड कंट्री, और आज की डेट में जो क्लाइमेट कंट्रोल के लिए जो कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है वो दोस कंट्रीज आर वेरी डेवलप्ड. बट डिस्पाइट हैविंग ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, इंडिया इज टेकिंग वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स टुवर्ड्स द क्लाइमेट कंट्रोल. तो उसको उन्होंने रखा है कि क्लाइमेट कंट्रोल हम कैसे करें. सेकंड, उन्होंने रखा है यूज ऑफ टेक, क्योंकि जैसे आप जानते हैं टेक का यूज बढ़ता जा रहा है. तो उसके लिए उन्होंने रखा है कि जो टेक का जो यूज है, दैट शुड बी फ्यूजन ऑफ द एंशिएंट विजडम. क्योंकि जो टेक है, अगर हम उसको अनवारंटेड और अनकंट्रोल वे में यूज करेंगे, तो इन फ्यूचर टेक विल क्रिएट ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम. बहुत पेंडेमिक से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर हम अनकंट्रोल यूज करें. तो इसलिए इंडिया ने थीम दी है कि जो भी गोइंग फॉरवर्ड हम टेक का यूज करें, दैट शुड बी फ्यूजन ऑफ द एंशिएंट विजडम. एंड व्हेन वी टॉक द एंशिएंट विजडम, it is a global wisdom. We are not talking only Bharat wisdom, it is a global wisdom. Number 2 है. And number 3 है women led development, because as you all aware of कि women empowerment को जो है बहुत ज्यादा जो है सपोर्ट की जरूरत है. तो एक थर्ड उसमें थीम में पार्ट रखा हुआ है women led development. एक चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें रखा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ग्लोबल कोलैबोरेशन, कि जो भी हमारा ग्लोबल कोलैबोरेशन होगा वो डिजिटल जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसके बेस पे अगर हम करेंगे तो वी विल हैव मोर एंड मोर इफेक्टिवनेस. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक रखा है इंडिया ने जो दिया है कि हम अपना वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क क्रिएट करें एसडीजी के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, जो हम ईएसजी की बात करते हैं, एनवायरमेंट, सोसाइटी एंड गवर्नेंस की. तो उसके लिए हम एक वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क बनाए ताकि सब लोग उसको जो है कंपल्सन और ना कंपल्सन होते हुए, कंप्लायंस या ना कंप्लायंस होते हुए उसको जो है मोर ऑफ द प्रोएक्टिवली उसको हम जो है उसको अडेप्ट करें उसको. So I think that is a very great achievement for our country, and our country has set the contest and has taken the lead. और जितनी भी सारी ये थीम आपको दी है, तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस G20 इन एडवांस ऑलमोस्ट ए ईयर बैक, और ऑलरेडी इंडिया ने फ्लोट कर दी है और जगह जगह जो है इंडिया की तरफ से सारा चीज को जो है पब्लिसाइज करा रहा है. So with these words, I will just take a break and thank you so much. Amita ji, over to you.
Amita ji, are you there? Yeah, I'm there. Yeah, now over to you. I have done. Your voice is not there. I think you are muted. Now, it is my pleasure to invite Mr. Vinay Agarwal for his keynote address. Before he starts, let me request the audience not to put questions in between. Let us post all the questions on chat box, and at the end of the session, we'll entertain those questions according to the time available. Over to you, Mr. Agarwal. Good evening, everybody. Good evening. Hi. Good Now, evening. first point first, before I start my presentation, let me just say it would be very nice if I can have everybody's video. It will give me energy because I want to speak to people and not to a blank screen. So, if you can indulge me, please, can you switch on your videos? It doesn't matter what where you are and what you are doing, but it will be nice to have everybody's video. So thank you for that, those people who have agreed to share the videos. Now, one sec, which, one second, there's some technical thing. My PowerPoint is not in PowerPoint mode. Slideshow kariye, please. Yeah. No, I know. Yeah, good. So guys, here is a topic. Okay, here is a topic for the day, and how do I get rid of this? Yeah. So here is a topic of the day. Build your own military grade business growth engine. अब सवाल है कि इस topic जो है, I'll be switching between English and Hindi, so I hope everybody is comfortable with that. Yeah, okay. So ये topic, why this topic? सवाल ये पैदा होता है कि एक बिजनेस ओनर जो है उसका अपने बिजनेस के प्रति towards his business, what is that they want to do? What is his duty towards his business? And the duty typically is that it is about you want to grow and you want to have profits. You want to have profitable growth. Creating that profitable growth by whichever means, whatever strategy, whatever operation, whatever finance, etc., is the prime job which most business owners are engaged in. But very often, ये हमें दिखता है कि होता नहीं है. हम लाख कोशिश करते हैं, दीवार पे सर जाके मारते हैं, करते हैं, कभी हो जाती है, कभी नहीं होती, कभी नहीं होती, कभी होती है. So that also brings us to the context that while growth happens at times, it is not reliable. And the ultimate in reliability is military. You know what is this whole military grade? Why this military grade? हम कोई फौजी तो बनने वाले नहीं, हम तो बिजनेस वाले हैं. सवाल ये पैदा होता है कि अगर जैसे मैं एक कंपनी के बोर्ड पे था, हम लोग डिस्प्ले सिस्टम सप्लाई करते थे टू दी Sukhoi aircraft, to HAL, which was put on our Indian displays from this company are put onto the Sukhoi aircraft for use. अब डिस्प्ले क्या है? डिस्प्ले एक सिंपली आपने देखा होगा CRT है या लैपटॉप का स्क्रीन है या कुछ है, 5, 10, 15, 20 हजार रुपए का आइटम होता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट साइज यू बाय एंड व्हाट स्पेक यू बाय. बट जब यही चीज जहाज में लग जाती है तो वहां पे इसका दाम इतना नहीं होता. आपको ताज्जुब होगा, इससे 50 गुना 100 गुना ज्यादा होता है. 2 गुना 3 गुना 4 गुना नहीं. क्यों? क्योंकि ये मिशन क्रिटिकल होता है. आपका पायलट जिस समय जंग में दुश्मन से लड़ रहा है, उस समय आपके जहाज में गोली लगी और वो जहाज थरथराएगा बुरी तरह से उसके अंदर कंपन हो गई. जब आपका टेक ऑफ किया, जब उसने साउंड की स्पीड क्रॉस की, कंपन हो गई और आपका डिस्प्ले फट हो गया, तो आपका ये 100 करोड़ का जहाज और वो आपका आदमी और वो जंग जो है सब आपके लिए बेकार हो जाएगी. सो इट इज अ मिशन क्रिटिकल. सो वी वांट टू बिल्ड आवर बिजनेस to be as reliable, our business growth to be as reliable as this. And that is the purpose of today's presentation. And that is what I intend to show you. Okay.
So can I know a little bit about the people in the chat box? Please, we are not going to have discussion, but can you just say in the chat box what is the business you are in quickly, then I can have a look at that. Okay, okay. I'm sorry, there's some glitch at my end. I can't see the chat box. I'm so sorry. Amita ji, will you please help me with that chat box? Okay, here it is. Here's the chat box, right? Okay, home textiles, building material, barcode, consulting. Okay, wonderful. So we have a mixture from various streams, rice industry. Okay, lovely, lovely. Education, technology, and so on. So as you can see, our audience is from all of you are from diverse fields, but trust me, whatever I say will be applying to all of you. Next, in your business, do you find that the day-to-day running of your business leads to a lot of firefighting, takes up a lot of your time, and leaves you not that much time to do the marketing, growth, and so on and so forth? Do you find that there's a lot of firefighting in your business? Yes, no, yes, no. Guys, your response will give me yes, okay. Yes, Jansab, yes. Hey guys, my energy comes from your response, okay? Okay, yes, yes, yes. Okay, yes, yes. Okay, so this is yeah. Okay, everybody so far has said yes. Nobody has said no. Okay, so let's go to the next one. Do you find that you often miss your sales targets? You thought at the beginning of the year that this is what we wanted to do, this is the growth target we have, and then at end of the year we find कि यार तो कुछ फट हो गया, कुछ मामला गड़बड़ हो गया. हम सोच के चले थे कि हमारी बिजनेस 50 करोड़ की है, इस साल हम 70 करोड़ करेंगे, लेकिन 53 या 54 करोड़ में रह गए. Okay, so this again I see yes, yes, yes. So there is a lot of angst on this score as well. Now, so do you feel okay? टारगेट तो मिस हो रहे हैं, बट डू यू फील इनहेरेंटली हमारी कंपनी में इतना स्ट्रेंथ है कि वो और ज्यादा तेज ग्रो कर सकती है जितना आज है उससे? चैट बॉक्स प्लीज. डू यू फील कि कहीं ज्यादा कर सकती है? हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. हम 24/7 अपनी कंपनी के हित के लिए वी आर वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर कंपनी 24/7. वी गिव ऑल आवर टाइम, वी गिव ऑल आवर मनी to this, but somewhere we feel that it doesn't grow as fast. So guys, this is what I want to talk about to you today. Okay, this is how you get out of this situation. What do you do? Right now, my promise to you is to show you a proven method. अब यहाँ पे हमारी क्लास में दो we are all entrepreneurs, and entrepreneurs by nature is a dabang. You cannot be an entrepreneur, you have to be dabang. You are the master in your company, right? And we have seen it all, and then we say कि बस हाँ आप क्या मुझे बताओगे 3x in 3 years, ये तो हमको पहले से पता है, right? हमने कोर्स भी किए हैं, हमने ऑटोमेशन का कोर्स किया है, हमने स्ट्रेटेजी का कोर्स किया है, हमने ऑपरेशन इंप्रूवमेंट का कोर्स किया है, हमने मार्केटिंग का कोर्स किया है. पर सवाल ये पैदा होता है कि कोर्स तो हमने किए और हमको अपनी बिजनेस के बारे में बहुत कुछ पता है और सब कुछ पता है. इनफैक्ट आपसे ज्यादा आपके बिजनेस के बारे में किसी को नहीं पता. पर हम फंसे हुए क्यों हैं? ये पहले वाले जो क्वेश्चन है इनका आंसर यस में क्यों है? हमारी ग्रोथ हम जितना चाहते हैं उतनी क्यों नहीं हो पा रही? जितना हम सोचते हैं हमारी कंपनी का पोटेंशियल है, क्यों नहीं हो पा रहा? और मेरा प्रॉमिस ये है कि मैं इस प्रेजेंटेशन में आपको ही दिखाऊंगा आपकी कहां पे, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी ग्रोथ कहां पे रुकी हुई है और उसको कैसे आप अनलॉक कर सकते हैं. 3x in 3 years is just meant as a figure. It is not a prescription. You could have grown 4 times or 5 times in the last year, or you may have grown only 5% in the last year. This is 3x in 3 years is typically good for companies which have been growing at 5%, 10%, 15% or so. Well, if you have been growing at 50%, then you need to look at a far better target. So कैसे होगा इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं. Okay. Now, first thing first, that
what I am going to take you what I'm going to show you will take you out of your comfort zone. देखिए, अगर हम वही चीज करते रहेंगे जो कि हम आज तक करते आए तो हम वहीं पे खड़े रहेंगे. अगर हमें कोई नया रिजल्ट लाना है, हमें कोई जो नई चीज करनी पड़ेगी, और कोई भी नई चीज करना हमारे लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है, किसी के लिए भी. आज आप कहिए जी आप रोज मेरी आदत है मान लीजिए रोज सुबह 8 बजे उठने की, मुझको कोई ऐसा प्रोग्राम हो जाए कि जी मुझे रोज सुबह 6 बजे उठना पड़े, कोई कंपल्जन हो जाए, मैं कब डिस्कंफर्ट में चला जाऊंगा. इसी तरह से बिजनेस में. सो बट यू वांट टू मूव क्विकली टू अ हायर लेवल ऑफ सेल्स, सो यू हैव टू प्रॉमिस टू बी दैट आप इसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए कम से कम मेंटली एटलीस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोग्राम तैयार होंगे. कम से कम कोई अनकंफर्टेबल चीज दिखे तो उसको समझने की कोशिश करें, रादर देन क्या यार ये तो हमसे होगा नहीं, यार ये तो बहुत ज्यादा है, हमसे होगा नहीं. राइट. सो लेट्स नॉट लुक फ्रॉम द लेट्स पॉइंट ऑफ द लुक इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्केबिलिटी. क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा, रादर क्या काम करेगा, किस तरह से हम जा सकते हैं. अब जब मैं आपको बताऊंगा, आपको 2 रोड ब्लॉक आएंगे. पहली चीज कि मुझे तो ये पता है. अब सवाल ये है कि मैं सच में आपको कोई ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो कि रॉकेट साइंस है. आपको इसमें से बहुत सी चीजें पता होंगी, कुछ चीजें हो सकता है आपने उस तरह से सजाई ना हुई हो, और हो सकता है कि उसमें 1 आध 2 4 5 आपको नई चीजें भी पता लगे, बट ब्रॉडली आपको कई चीजें पता होंगी. लेकिन ये जो सिंपल प्रिंसिपल्स मैं आपको बताऊंगा आज, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये नहीं है कि हमको पता है कि नहीं पता है, इंपॉर्टेंट ये इनकी महत्ता क्या है. मैं आपको बताता हूं कि इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर जो चीजें मैं आपको 6 7 8 चीजें बता रहा हूं, 7 चीजें बता रहा हूं, इन्हीं के ऊपर बड़ी बड़ी बिजनेस एम्पायर्स खड़ी है. मैं 10 करोड़ की, 100 करोड़ की, 1000 करोड़ की नहीं बात कर रहा हूं, लाखों करोड़ की एम्पायर्स भी जो है वो इन्हीं प्रिंसिपल्स पे खड़ी. प्रिंसिपल्स यही है, इनको हमें अपने बिजनेस में कैसे लाना है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. और दूसरी चीज है, दिस डज नॉट अप्लाई टू मी और दिस कैन नॉट बी डन. राइट. एक ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जी ये चीज तो है, ये सबके लिए तो लग जाएगी, लेकिन इट्स नॉट फॉर मी, मेरे में नहीं हो सकता. हमारे यहां फर्क है. मैं आपको बताता हूं कि ये यूनिवर्सल है. जैसे मैंने आपको कहा, लाखों करोड़ों की एम्पायर खड़ी है. मैंने इनको अलग अलग बिजनेसेस में खुद अप्लाई किया है. मेरा पूरा एग्जीक्यूटिव कैरियर, आई हैव बीन सीईओ in large professional Indian companies, in MNCs. I have been CEO of Dish TV and many others. And basically सब जगह यही प्रिंसिपल काम करते हैं. वो कंपनियां इन्हीं प्रिंसिपल्स को लगा ला के बढ़ी हुई है. सो मेरा पूरा एग्जीक्यूटिव कैरियर, मेरा पूरा कंसल्टिंग कैरियर इस पे खड़ा है. मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रेजेंटेशन को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि यार ठीक है, मुझे अगर नहीं भी समझ में आ रहा कोई बात नहीं, या मुझे लग रहा है कि ये शायद नहीं काम करेगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार मैं ये सोचूं कि जो विनय जी कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं और मैं किस तरह से अप्लाई कर सकता हूं. ठीक है, अप्लाई कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो मत करो, बट एटलीस्ट ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन लुक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दैट दिस इज समथिंग विच कुड पॉसिबली बी ऑफ यूज टू मी. सो हाउ कैन आई अप्लाई व्हाट विनय इज सेइंग. राइट. एक चीज और है कि आजकल ना हम लोगों ने कोर्सेज बहुत कर लिए, बिकॉज जूम का जमाना चला जब से कि कोविड में हम लोगों ने बहुत कर लिए. तो कभी कभी ना जब कोई आदमी ज्यादा कोई चीज खा लेता है तो डाइजेस्ट होनी बंद हो जाती है. तो प्लीज थोड़ा सा दिमाग, मेरे को थोड़ा सा टेंशन है, दिमाग खोले, हो सकता है आपका उससे कुछ बेनिफिट हो जाए. मेन चीज ये है, एक एक कोर्स और जोड़ते जाने से, नए नए कोर्स जोड़ते जाने से हमको कुछ उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा. एक सूत्र पकड़ो जो आपको पसंद आए और उसको एंड तक ले जाओ, तब हमें रिजल्ट मिलेगा. सो माय इन्विटेशन टू यू इज टू अंडरस्टैंड दिस सूत्र, दिस एंड see it and see if you can adapt it, and if you adapt it, please take it from the beginning and go right till the end of it. So in the next 70 minutes we are going to discuss the 7 fail-proof strategies to get your business to grow to the next level and beyond. Okay, and when we finish, I have a promise for you. At the end of the thing, there will be a free gift for everybody in this class. So please stay with me till the end and hear me out. Can I have your permission to tell me quickly 2-3 minutes about myself? Guys, folks, audience, Yes. friends. Yeah, can we have it in the chat box, please? Please don't come on mic because that disturbs my flow. Okay. So I have your permission, fine. I'll tell you.
This year, I am celebrating the 46th anniversary. 46th anniversary of what? Not 46th anniversary of my 20th birthday. So I am a young 20-year-old celebrating his 46th anniversary. That's the way how I look upon myself. I'm a business growth and turnaround expert. And to help companies, I have codified some of my knowledge in the form of a Hockey Curve Growth 2.0 protocol. Part of this, the first step, using this protocol, I've helped a number of companies as a consultant to help to grow very rapidly since last 11 years. I have also codified the first portion of this into a book called Are You Getting the Growth You Truly Deserve? 7 fail-proof strategies to 2x your revenues in just 18 months, which means about 4x actually in 3 years. Okay, so 3x is a conservative figure, 4x is what we can talk about. And iski pure ki aapko jhalak jo hai iske andar milegi. The book is slightly more complete, but you'll get a good flavor from what we are talking about today. This, I think we have said, I've been a CEO for 18 years. I've also been an industrial leader. I was a member of CII National Council. CII National Council is the executive body of the CII, where people are there by invitation only, and there are few elected members. So I was elected as the president of the Bearing Association, and our association was elected there. So I was there. So I've also had exposure to international business, being a global management committee member of St. Gobain Abrasives. Now, the 3 words which are most important to me, and that's going to be partly the focus: profit, growth, and transformation. So I work on helping companies transform their profit and growth, and that is why I called my consultancy firm, which I founded, as PGT Partners. Now, some of the PGT results in my life, which have been running my life, and why I thought this is important and why I have brought this presentation to you. I bought into an IT startup at 26. I was an entrepreneur. The company was practically bankrupt. In 4 years, we could make it highly profitable, zero debt, market leader. Now visualize, एक engineering college का graduate, उसके बाद एक MBA, उसके बाद 2 साल नौकरी की, और उसके बाद इस situation में आ गया. कुल 26 साल का very little immature experience. But if you keep your horse sense right, if you do all the right things and do not get distracted by all kinds of stuff, this is the kind of result which we can get. At 37, I became a CEO. I was given a company which was dead. मतलब dead मतलब आप सोचो, अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 40 करोड़ है, तो आपका 10 करोड़ का तो लॉस है, ठीक है, और 50 करोड़ के लोन है आपके सर पे. इस कंपनी को आप मुर्दा कंपनी नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? एक्चुअली ये कंपनी BIFR में थी, ठीक है. इट वाज अ लिस्टेड कंपनी, बट इट वाज इन BIFR. ओके, सो वहां से हमने क्या किया? इन 2 years हमारी सेल ट्रिपल हो गई. इन 3 years मेरा प्रॉफिट इन टैक्स जो -25 था वो +16 हो गया. और 5 साल में जितने वो लोन थे, लोन का जो पहाड़ था, वो सब चुकता करके हमने फ्रेश लोन लिए एक्सपैंड करने के लिए. Consultant at 55. Okay, help transform many businesses. A hand tool manufacturer. इनका क्या था कि पिछले 5 साल में टोटल इनकी ग्रोथ 7% पर ईयर के रेट पे हो रही थी. पहले साल में ही वो जंप करके 30 में गई. और उनका एक वर्टिकल था जो केवल 15 करोड़ का था, ठीक है. उस 15 करोड़ के वर्टिकल में 5 साल से जीरो ग्रोथ थी. 15 15 15 15 15, और फर्स्ट ईयर में वो चला गया 27 करोड़ पे, यानी 70% ग्रोथ. और दूसरे साल में चला गया 40 से भी ऊपर. दैट मींस इट वाज ऑलरेडी 3 times ओनली इन 2 years. ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर. ये ट्रांसफॉर्मर बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स है, पावर प्लांट्स में, स्टील प्लांट्स में लगते हैं. इनके यहाँ क्या होता है कि जब उनका ट्रांसफॉर्मर चालू होता था, बनने के एक्चुअल टाइम बहुत कम होता है, 10-15 दिन होता है, ठीक है. लेकिन वो उनका जो एवरेज डिलीवरी टाइम था वो 26 वीक्स था. तो जब हम लोगों ने उनके साथ काम किया, so within 6 months we could achieve कि 5 वीक में. कब? जब कस्टमर ने कहा कि भाई अब आप ट्रांसफॉर्मर बना दो. उसके बाद ये मटेरियल प्रोक्योर करते थे, और उसके बाद ड्राइंग रिलीज करते थे, मटेरियल प्रोक्योर करते तो बनाते. ये टोटल 5 वीक, जो पहले 26 वीक एवरेज में था. कोल्ड रोड स्ट्रीट मैन्युफैक्चर.
ये सप्लाई करते थे मारुति और हीरो होंडा के सप्लायर्स को, वो लोग सप्लाई करते थे मारुति हीरो होंडा। नो इन इंडस्ट्रीज में ऑटोमोटिव में क्या होता है, इन्वेंट्री को मतलब नहीं होता। जब मैं ऑटोमोटिव में था सप्लाई करता था तो मारुति हमारे पार्ट्स की 4 घंटे की इन्वेंट्री, सॉरी हम स्टीयरिंग को सप्लाई करते, स्टीयरिंग की 4 घंटे की इन्वेंट्री रखती थी और स्टीयरिंग वाले मेरे 2-3 घंटे के रखते थे। स्टीयरिंग वाला था कहाँ, गुड़गांव में, मेरी फैक्ट्री थी कहाँ, रांची में, राइट। वो 2-3 दिन की इन्वेंट्री रखता था। ट्रांसपोर्ट टाइम फ्रॉम रांची टू दिल्ली एट दैट टाइम वाज 10 days. Now how do you manage all this, right? So similarly they had a problem कि on time नहीं थी, because of which their sale used to suffer very badly. So we took them in within 4-5 months from 10% to 90%. So here is some customer testimonials which attest to this. It's not just I am who's talking about this. This gentleman said हमारी testimonial चले गए 10% to 90%. This was a 600 crore company. They are not okay that their name should be taken in a testimonial, but this gentleman later became director in Vardhman Textiles, and that's where he is today. This is Akhilesh Chitlangia. He is executive director of Duroply Industries, that is a listed company. I started working with them some time back, a few years back, and today they are going from strength to strength to strength to strength. In the COVID time itself, in 2020, between February and about 8-9 months later, we grew by 30%. And despite 2 years of COVID and lockdown and suffering a lot of cash problems because of that, we came today, we are more than double our sales from pre-COVID levels. So in 2 to 2.5 years, we have more than doubled our sales despite this COVID shutdowns and despite the cash, this thing. This is a smaller entrepreneur, sometimes work with smaller companies also, जहाँ पे promoter को ये गूदा होता है जी मैंने 10 गुना करके ही छोड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। मैंने if I feel then I work with smaller companies. So he was, when I went, he makes locks and fittings, जो आपके दरवाजे में locks and fittings लगती हैं. So he was struggling with all kinds of crisis, but within the first 1 year his sale grew by 50%, and that's what we could do. So these are the kind of results which you can achieve if we are talking, if you do what I am trying to tell you to. So with all due love and respect, let us start the main presentation now. Growth. Now, why is it problematic? You can answer in the chat box. What is the problem? What comes in the way of growth? हमने सबने कहा कि we are all trying to grow, right? But we are getting stuck. हम जितना चाहते हैं उतना नहीं होता, होती है लेकिन जितना हम चाहते हैं उतना नहीं होता, उतना स्मूथली नहीं होता और हम फंसे रहते हैं. Any reasons anybody can offer? We are all businessmen here. Can we offer some reasons for that? Can we offer some reasons? Fierce competition. Wonderful, sir. Anybody else? Come on, guys, let's engage. Approach. Okay, approach. Low sales. Okay, low sales. Why is the low sales gone up? What's your diagnosis? Okay, I think I'll proceed because there's a lot of material to cover. I have from various clients and various business people I engage with, these are some of the common problems which they talk about. Okay, sales people are not able to deliver. हमारी sales नहीं हो पाती. Customers keep changing their mind. वो आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, आज का order देते हैं, कल cancel कर देते हैं, etc. Vendors do not always supply on time. Cash, some businesses have a cash problem. They do not have sufficient cash to grow. The internal processes are unreliable. Sometimes the goods come out good, sometimes they don't come out good. We have a lot of problem in recruiting trained and disciplined people. Data is inaccurate or is not available. If one thing gets sorted out, इधर हम एक प्रॉब्लम एक आग बुझाते हैं, दूसरी तरफ दूसरी आग चालू हो जाती है. Basically, at the end of it, रिजल्ट ये होता है जो आप लोगों ने शुरू में कहा था, ओनर हैज टू एंड अप हैंडल एवरीथिंग टू कीप द शो गोइंग, नहीं तो शो में कहीं ना कहीं बैठने लगता है. अब प्रॉमिस ये है कि हम यहां पहुंचना चाहते हैं कि कस्टमर्स जो है वो मेरा ही प्रोडक्ट प्रेफर करें बाय करना. मेरे जो सेल्स टारगेट्स हैं वो हमेशा मीट हो जाए, कभी वो फ्लॉप ना हो. मेरा प्रोडक्शन और ऑपरेशन वही डिलीवर करे जो कि चाहिए हर बार, बार बार, लगातार, जिसको कहते हैं.
Cash flow should always be positive and should be sufficient to support my growth. Profit should increase year after year without a break. You know, this is so difficult. There was a study done by the Economic Times over a period of 20 years, and 20 years में उन्होंने कहा जी एक ही पैरामीटर रखा कि जी, and these are the 3,000 top listed company on the Bombay Stock Exchange, which means the 3,000 topmost companies in India. कि कितनी कंपनियां थी जिनका प्रॉफिट हर साल बढ़ा 20 साल में? Can you believe that number is only 23? Only 23 companies out of 3,000. That includes every Tata company, it includes every IT company, it includes every company that you know of. The whole organization works together to create breakthrough achievements. Okay, सब लोग टीम वर्क में काम करते हैं. Higher customer satisfaction, repeat sales, and owner focus on growth opportunities and business direction and spending time with the family instead of doing firefighting all the time. So these are the 7 elements which will help you get there where we are trying to go. उसको हमने 3 phases में divide किया है, और हम most of us पहले phase को ही नहीं कर पाते हैं ठीक से, जिसके हम लोगों ने indications दिए. So we will focus in our presentation much more on that aspect, and once we build that, we can go to the next aspects. I will touch upon it, but the detailing thing I will do on the first one, secure the present. Okay. First is to fail proof your operations. देखिए, अगर हम अपने ऑपरेशन को फेल प्रूफ नहीं करेंगे, वही तो डिलीवर करता है, ठीक है, तो वो नहीं होगा. और उस ऑपरेशन को चलाने के लिए चाहिए होता है पैसा. इन दोनों चीजों पे हमें फोकस करना है कि मेरे पैसे का रोटेशन ठीक से होता रहे और मेरा जो है ऑपरेशन चलता रहे. अगर ये है तो मुझे ये फील होगा अब सिक्योर हो गई मेरी बिजनेस, अब मैं कुछ और आगे छलांग लगाने की कोशिश कर सकता हूं. छलांग लगाने के लिए सीधे हम छलांग नहीं लगा सकते, पहले हमें अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा. दूसरी चीज, आफ्टर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ वी हैव टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वी आर क्रिएटिंग वन गोल फॉर ऑल. और जब वो हमने कर दिया, गोल भी बन गया, सबने बांध लिया उसके चारों तरफ, देन द पॉइंट इज कि इसमें आगे बढ़ेंगे कैसे. व्हाट इज माय लीवरेज पॉइंट. एक छलांग लगाने के लिए आपने पोल वॉल्ट वाला देखा होगा, आप ऐसे नहीं लगा सकते हाई जंप की तरह, उसको एक पोल चाहिए होता है, एक लीवरेज चाहिए होती है, उससे वो कूदता है. तो वो जो चीज है वो मेरे को कहां से आएगी. उसके बाद once we are done with all this, then we get the last 2 steps are to get our marketing right. Most businesses in my experience do not do marketing. What they call marketing is not marketing, it's sales or some form of sales. And second is सेल्स भी हम आदमी पे छोड़ देते. एक आया अच्छा सेल्स वाला रख लो, वो कुछ कर देगा, और नहीं करेगा तो उसको निकाल देंगे, फिर दूसरा रख लेंगे. तो दिस इज नॉट डिजाइनिंग द सेल्स प्रोसेस. व्हाट टू डू वी विल टॉक अबाउट. ओके ओके सो फेल प्रूफ योर ऑपरेशंस. द फर्स्ट स्टेप इन ऑपरेशंस इज कि ये मेरा ऑपरेशन डिलीवर करना क्या है. इसके अंदर मैं किस तरह से अपने ऑपरेशन को डिजाइन करना चाहता हूं, ठीक है. तो उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं उसको आउटकम्स के हिसाब से देखूं. इस हिसाब से नहीं, मेरी फैक्ट्री है, मैं इसमें ताले बनाने हैं तो ताले बना देता हूं, ठीक है, चले जाएंगे. अरे ये क्या हुआ. कस्टमर के तरफ से आप देखिए, कस्टमर को मैं क्या डिलीवर करना चाहता हूं उसको. अब मैं आपको उसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. अब आप बताइए, आप कस्टमर है. ज्यादातर हम में से लोग मैकडॉनल्ड में गए होंगे. तो अभी बताइए, जब आप मैकडॉनल्ड में जाते हैं, आप चैट बॉक्स में लिखिए कि आपको लगता है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है मैकडॉनल्ड से. ये एक दुकान है, आप उसमें पहले जा चुके हैं या आप नहीं जा चुके, सुना उसके बारे में, आप उसमें जाते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है मैकडॉनल्ड से, ये बताइए. कम ऑन गाइस इन द चैट बॉक्स, मैकडॉनल्ड से क्या एक्सपेक्टेशन है. गुड क्वालिटी बर्गर, फैंटास्टिक जैन साहब, गुड क्वालिटी बर्गर, यस. Quick delivery, okay. Speed, taste and timely delivery, wonderful. Consistent quality, wonderful, wonderful. Now this is your expectation, and what has McDonald's visualized? Same taste, yes. Now look here, आपने जो बोला यही मैकडॉनल्ड वाला भी कहता है, उसका डिजायर्ड आउटकम उसने यही बनाया है.
कि जी आप आओ तो आप दुकान में तो ऑर्डर फुलफिल आपका 5 मिनट से कम में हो जाए। अक्रॉस द वर्ल्ड, आप न्यूयॉर्क में हो, आप दिल्ली में हो, आप शंघाई में हो, आप सिडनी में हो, आपका इसका टेस्ट जो है सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। और हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हाइजीन इन फॉर द फूड, सो हाइजीनिक, टेस्ट एंड स्पीड, राइट, दीज आर द 3 थिंग्स दे आर। अब सवाल ये कि जब उन्होंने आउटकम विजुअलाइज किया, क्यों किया? मैकडोनल्ड एक आउटलेट से बन गई है 10,000 आउटलेट की कंपनी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब जो मैकडोनल्ड का एमडी है तो हर बैठ के आउटलेट को नहीं चलाता, उनको ड्राइव क्या करता है, उनके पूरे ऑपरेशन को ये, चाहे मैं परचेज वाला हूं, मैं बन खरीद के वहां पे आउटलेट में ले जा रहा हूं, चाहे मैं फाइनेंस वाला हूं जो कि सारा कैश फ्लो मैनेज कर रहा हूं, चाहे मैं एचआर वाला हूं जो लोगों को मैनेज कर रहा है, चाहे मैं स्टोर मैनेजर हूं, हर आदमी जो है वो एक ही चीज के लिए काम कर रहा है कि आपको एज अ कस्टमर, मुझको एज अ कस्टमर वो ये चीज दे सके। तो इसी तरह से मुझको अपने बिजनेस में एक आउटकम विजुलाइज करना है। अब कई बार लोग कहते हैं जी आप कंज्यूमर बिजनेस की बात करते हो। कंज्यूमर बिजनेस की बात हम इसलिए करते हैं बिकॉज दिस आर इजी टू अंडरस्टैंड, हमें सबको कॉमन एक्सपीरियंस है। अब मैं आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस की बताता हूं जिसमें एक्सपीरियंस कॉमन नहीं है, थोड़ा समझा के बताता हूं। हम लोग एक कंपनी में ये स्टील ट्यूब्स खरीदते थे, ठीक है, और ये स्टील ट्यूब्स जो है ये एक ऐसे पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के होते थे कि इंडिया में नहीं बनते थे, हमें बाहर से खरीदने पड़ते थे। तो हम जर्मनी से हमने लिए, अमेरिका से लिए, हमने जापान से लिए, वो कर करा करके। अब जब हम ये ट्यूब खरीदते हैं तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन थी? हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई दी क्वालिटी शुड ऑलवेज बी परफेक्ट, इट शुड नेवर फेल। सेकंड, इट शुड ऑलवेज कम ऑन टाइम। आपने देखा होगा, आप कोई चीज जापान पे या जर्मनी पे ऑर्डर करते हैं, वो आज ही कह देगा जी कि हम वीक नंबर फला में 12 में करेंगे, और वीक नंबर 12 जो है दैट इज लेट अस से दी मार्च 15 वाली वीक, वो 15 वाली वीक में चला जाएगा। इट्स रेयर दैट बिग कंपनीज लाइक दिस विल शिफ्ट इट आगे पीछे, राइट। लेकिन मेन चीज जो हम मित्सुबिशी से खरीदते तो उन्होंने एक एलिमेंट और डाल दिया था। बाकी कंपनी से हमको एरेटिक, हमको रफली 3 मीटर के ट्यूब आते थे, कोई उनके पीस 2.5 मीटर के थे, कोई 3.5 के, कोई 4 मीटर के। दिस यूज्ड टू कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस इन आवर फैक्ट्री। मित्सुबिशी बाय डिजाइन, हमने नहीं उनसे मांगा था, हमारे लिए तो वाव हो गया, वो हमको एग्जैक्ट 3 मीटर में देते थे ट्यूब। So that became a thing for us, that why we kept buying Mitsubishi. We didn't buy from the Germans, we didn't buy from the Americans, we didn't buy from other Japanese companies, but from Mitsubishi we kept buying this stuff. Guys, moderator, can you keep admitting people, because otherwise my thing goes away. Okay, so the first step is you visualize your outcome. अगर हमारे पास कोई विजन नहीं होगा, हम अपने ऑपरेशन को किस तरफ है, तो आज हमको लगेगा इधर जाना है तो उधर चले जाएंगे, आज क्वालिटी प्रॉब्लम उधर चलेगा, कल वो प्रॉब्लम उधर चले जाएंगे। दैट इज व्हाई वी विल हैव अ शिफ्टिंग सैंड। सो प्लीज डिजाइन योर आउटकम एंड देन build a systems which will create those outcomes. Now, what is this system business? Okay, let me tell you about systems. We all understand systems. Let me give you my understanding. ये एक एयरलाइन चेक इन का सिस्टम है जो हम सबको पता है, हम सब ने देखा हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि आप जाते हैं वहां पे, ठीक है, पैसेंजर को पैक्स बोलते हैं। सो द पैसेंजर कम्स, तो आप उससे टिकट, लड़की पूछती है आपसे, उसके बाद लड़की लड़का वो आपसे पूछती है, उसके बाद आपका वो देखते हैं कि भाई टिकट वैलिड है कि नहीं, उसके बाद अगर होते कहते हैं बैगेज है कि नहीं, आपका बैगेज रख देते हैं, सब कर करा के आपको बोर्डिंग पास दे देते हैं। लेकिन आपका हर बार, ठीक है, आप सही फ्लाइट पे जाके बैठते हैं, आपको सही बोर्डिंग पास मिलता है, आपका बैगेज आपके साथ चला जाता है, आपको सही सीट मिलती है जो आपने बुक की हुई है, आपको वो मील मिलता है जो, ये सब कहां से हो गया? ठीक है, आपको तो सिंपली वहां जाके एक बंदे ने चेक इन किया और आपका ये सब चीजें हो गई उसके साथ साथ में। सो दैट इज व्हाट अ सिस्टम डज। इफ यू हैव अ सिस्टम, योर ऑर्गेनाइजेशन विल आल्सो वर्क एग्जैक्टली लाइक दिस। But airlines have created this system. Otherwise, there was a chaos. I'll give you an example. पुराने जमाने में जब एक फ्लाइट हमने ली बॉम्बे, उदयपुर, दिल्ली। अब साहब दिल्ली में फॉग था, तो वो उदयपुर में फ्लाइट स्टैंडर्ड हो गई, ठीक है, तो उन्होंने कहा जी रात को जा नहीं सकती फ्लाइट, अब सुबह जाएगी। अब इस चीज का उस समय एयरलाइन के पास कोई सिस्टम नहीं था, बाकी सब चीज का था, तो बॉम्बे में कोई दिक्कत नहीं। वहां पे तो chaos हो गया। दो उनके बंदे खड़े थे,
200-250 पैसेंजर उनके ऊपर टूटे पड़े, कोई क्यू का सिस्टम नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ही कुड हैव सिंपली सेड, साहब आप अपने बोर्डिंग पास सीक्वेंस नंबर से आ जाइए ना, कुछ नहीं, फिर वो होटल के लिए स्क्रैम्बल करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। पॉइंट इज you will have a mess, and that is, if without system, very often in many organizations we are ending up with such a kind of a mess. So if we put system, we can avoid it. Second, sorry, I went in the wrong direction. अब सिस्टम होता क्या है? इट इज सिंपली अ सीरीज ऑफ स्टेप, कि अगर आप एक काम करो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो, और उसकी करो, तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, राइट? तो सिस्टम चाहिए क्यों? क्योंकि मेरी बिजनेस के ऑपरेशन में कई टुकड़े हैं। मेरे पास सेल्स है, मार्केटिंग है, फैक्ट्री के अंदर में ये मशीन है, वो मशीन है, कस्टमर का ऑर्डर है, डिस्पैच है, डिलीवरी है, फला चीजें हैं, पैसा है। ये सारे पीसेस जो है वो एक साथ काम करते हैं। जब वो गियर्स आपस में मिलके ठीक काम करते हैं तो ठीक हो जाता है, जहां गड़बड़ होती है हो जाता है गड़बड़। सो विदाउट सिस्टम्स होता क्या है कि आपको अपना टाइम जाया करना पड़ता है इन पीसेस को जगल करने में, क्योंकि उन पीसेस के सबका कंट्रोल आपके पास में है। लेकिन अगर हमने उसको लेकर के सिस्टम बना दिया, तो फिर वो उसके बाद हम रूल्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमारा काम बन जाता है कि उन रूल्स को डिजाइन करना और इंप्लीमेंट करना, रादर देन कि हर चीज में खुद कूद पड़ना। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ सिस्टम, इट विल फ्री अप योर टाइम। Okay, now let me give you 2 examples of system desired outcomes. Okay, what is the desired outcome which I have from 2 very common systems which are there in manufacturing industries? अगर आपका इन्वेंट्री सिस्टम है, उसका डिजायर्ड आउटकम एज एन ओनर आप क्या चाहते हैं? टिपिकली आप ये चाहेंगे कि भाई एक तो जो मेरा स्टॉक आइटम है, कि जो मैं मान लीजिए मैं बेचता हूं, मैं ताले बेचता हूं, तो मेरे जो अलग अलग मॉडल के ताले हैं वो मेरे को 95% अवेलेबल हो, या मेरा रॉ मटेरियल 10 टाइप की स्टील स्ट्रिप्स हैं, जब मैं चाहूं तो मेरे जो वो स्टील स्ट्रिप अवेलेबल हो, वो स्टॉक आउट ना हो। स्टॉक आउट तो ना हो, एक तरीका तो है मैं इन्वेंट्री का माउंटेन खड़ा करके स्टॉक आउट बचा लूं, नहीं, लेकिन स्टॉक आउट ना हो, लेकिन मेरी इन्वेंट्री जो है वो भी कम रहे, ठीक है, वो ज्यादा ना बढ़े। मेरा स्लो मूविंग और नॉन मूविंग का बिल्डअप ना हो गुड्स का, क्योंकि आप देखेंगे आपके इन्वेंट्री में 2, 4, 5, 7, 8% स्लो मूविंग नॉन मूविंग हो जाता है, फिर बाद में कूड़े का भाव बेचना पड़ता है मुझे। मेरी सेल्स का कोई प्रोडक्शन नहीं होता, सेल्स रोज बदलती रहती है, आज इस चीज का ऑर्डर मिलता है, कल उसका मिलता है, किसी चीज के ट्रेंड्स आते हैं, तो मेरा इन्वेंट्री सिस्टम उसको भी एडजस्ट कर ले विदाउट मी हैविंग टू जंप इन एंड कीप मेकिंग करेक्शंस। कितने भी एसकेयूज हैंडल कर ले, और चाहे तो एक्सेल में चला लूं, चाहे तो ईआरपी में चला लूं, ठीक है, और मुझे ना पढ़ना पड़े, स्टाफ मेरा चला ले, इतने इस लेवल का हो कि चला ले। अब इस टाइप के डिजायर्ड आउटकम के सिस्टम हमारे पास है, ठीक है। जब इस टाइप का सिस्टम है आपका, हमारा उससे द लास्ट डिजायर वी हैव इज कि जी ओनर शुड रिव्यू इट ओनली वंस अ वीक। अगर आपका टाइम उसके रिव्यू करने में चला जाएगा सारे समय, तो फिर उसका ऑब्जेक्टिव ही नहीं अचीव हुआ। सिमिलरली इफ यू सी ए प्रोडक्शन सिस्टम, ओके, इट मस्ट गिव मी 95% प्लस डिलीवरी, बिल्कुल टाइम टू टाइम। जो मेड टू ऑर्डर है, मेड टू स्टॉक तो पहले वाले में कर लिया मैंने, मेड टू ऑर्डर कि भाई कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से बनता है, तो उसके अंदर मेरे को ऑन टाइम डिलीवरी होनी चाहिए सारे समय, ऑल द टाइम, एवरी टाइम ऑन टाइम। उसके साथ साथ वो प्रोडक्शन सिस्टम इन्वेंट्री को भी जो मैंने लगाया है उसको 95% डिलीवरी में सपोर्ट करे। लीड टाइम मेरा मैन्युफैक्चरिंग का कम होना चाहिए। लीड टाइम मींस जिसमें मैं पहला रॉ मटेरियल काटता हूं जब से मेरा फिनिश गुड जाता है, वो लीड टाइम कम रहना चाहिए। लीड टाइम कम होगा तो मेरी WIP और क्लटर कम होगी शॉप फ्लोर पे। मेरा प्रोडक्शन अगर आज X है, क्या मैं उसको 30, 40, 50% बढ़ा सकता हूं विदाउट एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट? In most factories, in my experience, this is possible. In most discrete manufacturing, in my view, it is possible. Any number of SKUs I should be able to manufacture. System मेरा Excel ERP पे चले होना चाहिए, ऑपरेटिंग स्टाफ उसको चला लेना चाहिए, मेरे को उसमें नहीं पढ़ना पड़ी, और मैं इस पूरे सिस्टम को मैनेज के लिए एक बार हफ्ते में रिव्यू करूं, सिस्टम चले। ये मेरा डिजायर्ड आउटकम होना चाहिए सिस्टम से। Now we have such systems, when we work with our client, we help them implement such systems, which helps them to come out. You can use any system, right, which suits your fancy, but it must give these results.
जो भी सिस्टम, आप मेरा सिस्टम लो, किसी का भी सिस्टम लो, अगर ये रिजल्ट आपको उससे नहीं मिलेगा, ये विजुअलाइज आउटकम उससे आपको नहीं मिलेगी, तो आप उससे फ्री नहीं हो पाओगे। थर्ड इज, इन सब सिस्टम्स के बाद हमें नेक्स्ट चीज देखनी चाहिए कि वी शुड यूज टेक्नोलॉजी। ये हम इसमें नहीं, मुगालते में नहीं रहने चाहिए कि हम बिना टेक्नोलॉजी के हो जाए, बट क्वेश्चन इज विच टेक्नोलॉजी। देखिए, हर टेक्नोलॉजी बराबर नहीं होती, ठीक है। अगर मैं 20 करोड़ की कंपनी हूं, तो जो टेक्नोलॉजी 2000 करोड़ की कंपनी यूज करती, वो मेरे लिए प्रोबेबली नहीं सूट करेगी, ठीक है। और अगर मैं बड़ा कंपनी हूं, तो जो छोटा कंपनी टैली यूज करता है, वो शायद मेरे को नहीं यूज करेगी। सो आई हैव टू चूज दैट टेक्नोलॉजी। मुझे ये देखना चाहिए कि अगले 3 से 5 साल जो मेरी ग्रोथ पाथ है, उसके लिए पर्याप्त होनी चाहिए। जब मैं उससे बड़ा हो जाऊंगा, कुछ और ले लूंगा, आई हैव द वेयर विद ऑल, ठीक है। और मैं इतना बड़ा ना ले लूं कि यार वो है 3-5 साल निकाल जाए। Also, when you go for technology, do not go for the cheapest. Please understand, it is not a revenue purchase, it is an investment. इससे मेरे प्रोडक्टिविटी और मेरे कंपनी के आउटकम्स डिपेंड करते हैं, मैं किस टेक्नोलॉजी पे यूज करता हूं। इस पे डिपेंड करता है कि मेरे लोग कितनी आसानी से काम कर सके, कितने लो लेवल का आदमी काम कर सकता है उसके ऊपर। सो गो फॉर द टेक्नोलॉजी वेयर ऑल दिस इज पॉसिबल। Okay. Now, typical technologies which people use, they use ERPs for financial systems, operational systems. You can have something lower. You can have tallies for financial systems if you're a small company. They use some form of CRM. They use some type of marketing automation. So Excel is not technology. Okay, Excel is a useful tool. It's very useful, but अगर हमने कंपनी में हर चीज एक्सेल पे डाली है, तो ये हमने नहीं समझना चाहिए कि हमने टेक्नोलॉजी में डाली है, ठीक है। The important thing about the technology and the important thing about being a business owner is कि इन सब चीजों में मुझे ऑपरेट नहीं करना है, लेकिन मुझे डिसाइड करना है। मुझे अगर टेक्नोलॉजी में कोई चीज ला रहा हूं, इस तरह से नहीं हो सकता कि हमने 4 लोगों से पूछा, उसने कहा जी मेरे यहाँ तो ये लगी है, मेरे यहाँ तो ये लगी है। हमने किसी से, अपने सीए से पूछा, किसी और से पूछा, उसने कहा जी ये चलेगा, और हमने वो लगा दी कि हाँ जी ये तो बड़ा अच्छा होता है, फैशन की तरह से। ये फैशन में नहीं पढ़ना है हमको, हमें इसमें पढ़ना है कि मेरे लिए क्या अप्रोप्रिएट है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक कंपनी चला रहे थे, उसके अंदर हमको लगाना था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर। टीवीएस की कंपनी थी, आई वाज अ सीईओ। तो उसके अंदर क्या हुआ कि जी अभी लगाना है, तो हमारे एक बंदे थे, कुछ वो रिलायंस से आए हुए थे, कहते हैं हमारे तो एसएपी चलता था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, एसएपी लगाएंगे। तो दूसरे बंदे थे, वो कहीं और से आए, तो उन्होंने कहा कुछ और लगाएंगे। तो हमने एक्सप्लोर किया, तो एसएपी निकला, ऑरेकल निकला, माइक्रोसॉफ्ट निकला, और एक अपनी वो मद्रास की कंपनी, उसका नाम भूल रहा हूं, अभी याद आएगा। चारों निकले। अब हमने कहा कि जी हम सारे की कंपनी, सारी की सॉफ्टवेयर अच्छी थी, हमने सबके कहा कि हम आपके यूजर से बात करेंगे, तो एक एक यूजर से बात की। देन वी डिस्कवर्ड कि जो चीज हमें एग्जैक्टली चाहिए थी, उन सब में, चारों में से किसी में भी नहीं थी। और उसके, हाँ, रैमको, राइट, करेक्ट इनपुट, दैट कंपनी वाज रैमको, साउथ वाली, तो उसमें एग्जैक्टली नहीं थी। और उतने रिजिड सिस्टम्स थे कि हमारी कंपनी, जो कि 300 करोड़ 400 करोड़ की कंपनी थी, उसको करने के लिए हमें 20 आदमी का आईटी डिपार्टमेंट बैठाना पड़ता अगर हमें एसएपी यूज करना होता, विच वाज नॉट अफोर्डेबल। सो देन वी फाइनली फाउंड, our auditors और प्राइस वाटर हाउस, उन्होंने कोई एक सेंटर इंक्यूबेट किया था कैलकाटा में एक सॉफ्टवेयर के लिए। दे हैड द राइट सॉफ्टवेयर, जिसमें हमें पैसे भी कम खर्चा करने पड़ते और हमारा पूरा काम भी हो जाता। So that was appropriate for us. So as a CEO, I had to get into this. I had to only get into this, ask the right questions, and come to the decision कि ये करना है कि नहीं करना है. This is what I am urging you to do on technology, on your systems, on your machines, on everything. Last step is you staff for success. Okay? सबसे पहले जब आप स्टाफ करें, कि देखिए जी जब हम स्टाफ करने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जी हम एक्सपेक्ट बनाते हैं कि हमको जी ऐसा सेल्स में बंदा चाहिए, या ऐसा फाइनेंस में चाहिए, या ऐसा प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए। और फिर हम उसकी स्पेक बनाते हैं, जी उसमें इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके ये रिजल्ट पास्ट के होने चाहिए, उसकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी ये तनख्वाह होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, एक पूरा। अब हमने स्पेक बना लिया। अब हमने स्पेक किस चीज का बना लिया? किस चीज का बना लिया? चीते का। वी वॉन्ट अ चीता इन आवर बिजनेस। चीते से कम हमें चलेगा ही नहीं। अब चीते का स्पेक बना लिया। अब क्या प्रॉब्लम हुई? हम गए बाजार में, हम देखने गए,
वहां जब हम बाजार में गए तो वहां पे हमने देखा कि भाई यहाँ तो चीता तो मिलता नहीं। ठीक है, चीता मिलता भी है, अगर कहीं से मिल भी जाता है तो वो बहुत महंगा होता है, हमें सूट नहीं कर पाता, या वो हमारी साइज की कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहता। अब हम क्या करें, या हमारी नेचर ऑफ बिजनेस, वो तो कहता है मैं टेक्नोलॉजी बिजनेस में काम करूंगा जी, मैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता, समथिंग और दी अदर। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि अच्छा भाई चीता तो मिल नहीं रहा, अब क्या करें, चलो एक बिल्ली ले आते हैं। अब हम एक बिल्ली ले आते हैं, फिर जैसे ही बिल्ली कंपनी में आती है हम उसको कहते हैं, हे बिल्ली चीते का काम कर। अब वो बेचारी बिल्ली क्या करेगी, बिल्ली तो चीते का काम कर ही नहीं सकती। ठीक है, वो अपनी जान भी दे दो भी चीते वाला काम नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब ये है, वी हैव टू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ पीपल वी नीड, एंड माय सजेशन इज टू डू दिस। जब भी हमें कोई हायर करना हो, सबसे पहले वी शुड लुक एट द पीपल आई हैव। देखिए जो आपके लोग हैं, कोई बंदा सुबह ये नहीं कह के चलता, आपको कितने भी लगता हो कि आज मैं कंपनी का बड़ा कार्य करके आऊंगा, हर आदमी ये सोच के चलता है आज मैं जाऊंगा कंपनी में कोई बढ़िया काम करके आऊंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पहले उनकी तरफ देखिए, उन्होंने ही आपकी कंपनी को यहां तक पहुंचाया, उनको आपके कल्चर से, आपके सिस्टम से, हर चीज से वाकिफ, आपसे वाकिफ है, आपके मूड से वाकिफ है। सो पहली चीज ये है कि पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास जो लोग हैं उनमें आप किसी को ले सकते हैं, किसी को अपग्रेड कर सकते हैं, किसी को रिट्रेन कर सकते हैं, किसी के ऊपर जिम्मेदारी डाल सकते हैं, वो देखिए। बहुत इजी है सोचना कि दे आर नॉट अप टू द मार्क, ठीक है, बट हायरिंग की तो मैंने आपको कहानी बताई दी। दूसरी चीज, तो द एक्शन आइटम इसमें पूरे सेक्शन में क्या आया, फर्स्ट इज टू डेवलप सिस्टम, then develop the existing people to handle those systems, right? Then to identify if there are any gaps, only then we hire. और एक टिप है कि दोनों हायर्स के लिए अगर हम इस टाइप का एम्प्लॉयर बन सके, जितना ज्यादा हम इस तरफ जाएंगे हमें उतने से ज्यादा अच्छे से अच्छे हायर्स मिलेंगे, हमारी मार्केट पे रेपुटेशन बनेगी। पहली चीज, क्या हम ये सोच सकते हैं एम्प्लॉयज वॉलंटियर है? देखिए आजकल की तारीख में आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि यंग लोग जो है वो आसानी से काबू में नहीं आते। सी पीपल इन माय एज ग्रुप, तब तो नौकरी मिल जाती थी तो वही बहुत बड़ी बात होती थी। अब ऐसा नहीं होता, पीपल आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। आदमी कहता है जी मैं यहाँ रहता हूँ, मैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं उतने काम नहीं करूंगा, 75 चीज है। तो कैन वी थिंक कि ये आदमी अपना वॉलंटरीली यहाँ पे काम कर रहा है और हम उनको उस तरह से ट्रीट करें जिस तरह से हम वॉलंटियर्स को करते हैं, रादर देन कि भाई ये तो दुकान का नौकर है, इसको तो हम कर सकते हैं। दैट जो कंपनी इस तरह से करती हैं, वो they go in that direction, they tend to have much better retention and much better skilled people with them. एंड सिमिलरली ये सब कर आके और भी बहुत से तंत्र करके आपको लोगों को पता है वो ट्रेडिशनल तंत्र कि हाउ टू बिकम अ प्रेफर्ड एम्प्लॉयर ऑफ माय साइज इन द एरिया फ्रॉम वेयर आई एम ट्राइंग टू रिक्रूट। एवं मैं 20 करोड़ की कंपनी हूं और लोनी इंडस्ट्रियल एरिया में हूं, तो उस इंडस्ट्रियल एरिया में आई शुड बी नोन वन ऑफ द बेटर एम्प्लॉयर्स ऑफ दैट एरिया। Okay, so the first element which we learned about was in thing was to manage my operations such that वो टकाटक चले, टकाटक फर्स्ट क्लास। और उसके लिए हमने 3-4 पॉइंटर्स डिस्कस किए। सेकेंड थिंग along with operations is कैश। देखिए मैंने ऑपरेशन कर दिया, लेकिन अगर मेरे पास कैश नहीं है, तो कैश तो एक कंपनी में इस तरह से होता है जिस तरह के बदन में खून होता है कि वो वही सारी एनर्जी चारों तरफ लेके जाता है, सारे ऑर्गन्स में वही लेके जाता है। सो कैश के लिए पैसे मैनेज करने के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। यहाँ पे मैंने देखा कुछ अकाउंटेंट लोग भी हैं, उनको बहुत इस चीज के बारे में नॉलेज है, लेकिन मैं 2 चीजों पे फोकस करना चाहूंगा। फर्स्ट इज कैश टू कैश साइकिल एंड सेकेंड इज what to do with investing in the business। याद ये रहे कि कैश की सबसे बड़ी, जैसे मैंने कहा, खून की तरह से, टॉप लाइन इज वैनिटी, बॉटम लाइन इज सैनिटी एंड कैश इज रियलिटी। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं ताकि आप पे कोई ये मतलब सॉर्ट ऑफ फिल इन हो जाए। ऐसा है कि हमारे पास एक मान लीजिए चांदी सोने का कोई डब्बा था, ठीक है, वो पिछले 10 पुश्तों से मेरी फैमिली में चला आ रहा है। अब कहीं पे मैं बैठा था किसी होटल में, वो किसी को दिखा रहा था अपने दोस्त को, बाई चांस वहां पे हमारी टेबल की बगैर से मुकेश अंबानी गुजर गए। अब उन्होंने जब उसको देखा तो वो रुक गए, डब्बा तो मुझे चाहिए।
अब मुकेश अंबानी तो मुकेश अंबानी है। तो मैंने कहा सर ये तो बिकाऊ नहीं, तुम्हारा फैमिली हेirloom है। कहते नहीं जी मुझे तो चाहिए। कि कितने का है? मैंने कहा है ही नहीं, इसकी कोई प्राइस ही नहीं है। ठीक है, नहीं अच्छा मैं तुमको 1 करोड़ दूंगा। मैंने कहा नहीं बॉस 1 करोड़ मुझे बेचता ही नहीं है। ठीक है, फिर वो बोले 10 करोड़, फिर वो बोले कुछ और वो बोले 100 करोड़ है। अब 100 करोड़ में तो अग्रवाल साहब ने कहा भैया देखो भैया 100 करोड़ तो न मैंने देखे ना मेरी पुश्तें देखेंगी, तो 100 करोड़ जो है ये ले लेते हैं और ये जो है पुश्तों को हम समझा लेंगे, कुछ पूजा पाठ कर लेंगे, सब हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन डाल दी। कंडीशन उन्होंने ये डाल दी कि भाई साहब ये जो चीज है ये मैं आपको 3 साल का पोस्ट डेटेड चेक दूंगा। अब ये बताइए अंबानी साहब अगर आपको चेक दे रहे हैं पोस्ट डेटेड, क्या आप उसको रिफ्यूज कर देंगे? आप कभी नहीं रिफ्यूज करेंगे, आप कहेंगे ये तो चेक इज एज गुड एज गोल्ड। ठीक है, अब आपका हुआ क्या? टॉप लाइन आपकी, सपोज ये आपका पर्सनल एसेट नहीं होता, आपकी कंपनी में पड़ा होता मान लीजिए, तो अब क्या होता? आपकी टॉप लाइन तो उस साल की हो गई 100 करोड़ अपार्ट फ्रॉम योर अदर बिजनेस। बॉटम लाइन क्या हो गई? इसकी आप किसी कॉस्ट पे कैरी कर रहे हो, 10,000 20,000 50,000 की कॉस्ट पे कैरी कर रहे होगे उसको आप, क्योंकि कोई इसकी वैल्यूशन जो भी आपने कोई वैल्यूएशन कराई वो 100 करोड़ की नहीं होगी। ठीक है, तो आपने उसको मान लो 1 लाख रुपए में आप कैरी कर रहे थे उस डब्बे को। ठीक है, अब आपका हुआ क्या? आप बैंकरप्ट हो गए सर। आप बैंकरप्ट कैसे हो गए? क्योंकि जब आपने उस साल में उसको किया तो 100 करोड़ माइनस 1 लाख पे तो पहले तो आप 33% इनकम टैक्स दे दो, इनकम टैक्स और बाकी सब उससे रिलेटेड। ठीक है, दूसरा एक 100 करोड़ के ऊपर 18 करोड़ की आप जीएसटी दे दो आज उसको बुक करके। ठीक है, 50 करोड़ का आपका आउटफ्लो है 100 करोड़ में से, तो cash will come 3 years later, but today I have to spend 50 crores, which I don't have, so I am bankrupt. This is the importance of cash in your business. So please pay attention to the cash to cash cycle. Cash to cash cycle, सब accomplished businessman आपको पता है. So let me take this as a reminder only for you. Okay. Cash to cash cycle क्या है कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लूं जहां मैंने पहला पैसा खर्चा किया, दैट मीन्स रॉ मटेरियल का, और लेके एंड तक मैंने उसको स्टॉक में रखा, रॉ मटेरियल को फिर प्रोड्यूस किया, फिर फिनिश गुड स्टॉक में रखा, फिर मेरी लॉजिस्टिक्स हुई, मेरी बिलिंग हुई, और उसके बाद में जब ये सब कर करा के जब हो गया तो फिर उसके बाद पैसे कलेक्ट होके घर में आ गए। ये जो टाइम है इसको पूरा कैश टू कैश साइकिल हो गई। इसका डेफिनेशन ये है कि कितने डेज ऑफ इन्वेंट्री, नंबर ऑफ डेज ऑफ सेल्स की इन्वेंट्री रख रहा हूं, कितनी की रिसीवेबल्स और कितने की पेबल्स है मेरी। अगर मेरी रेवेन्यू 30 करोड़ की है और प्रॉफिट मेरा 2 करोड़ का है तो मेरी 2.5 करोड़ पर मंथ की सेल हो गई, तो मेरी इन्वेंट्री 5 करोड़ की यानी मतलब 60 डेज की, 2 मंथ्स की। रिसीवेबल 7.5 करोड़ यानी 90 डेज 60 डेज के, सॉरी 90 डेज या 3 मंथ। पेबल्स इसी तरह से 2 महीने के। कैश टू कैश साइकिल कितनी हो गई मेरी? कितनी हो गई सर? कितनी हो गई कैश टू कैश साइकिल सर? Guys, anybody following me? कितने की हो गई कैश टू कैश साइकिल? Come on, guys. Okay, I'll in the interest of time, I'll come to the next one. मेरी इन्वेंट्री है 60 डे की, 90 डेज की रिसीवेबल, तो मेरी कैश टू कैश साइकिल 90 डेज की हो गई। ओके, नाउ इस कंपनी को अगर अपना रेवेन्यू डबल करना है तो इसको कितने पैसे लगेंगे बताइए? इसको अगर अपना पैसा डबल करना है तो कितने पैसे लगेंगे? 30 करोड़ से 60 करोड़ में जाना है तो इसको पैसे कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इन द वर्किंग कैपिटल? कम ऑन गाइस, 7.5 करोड़ इज राइट सर, 7.5 करोड़। 2.5 करोड़ की उसकी पर मंथ सेल है और 90 डेज की वर्किंग कैपिटल है उसकी नेट, और दिस इज अज्यूमिंग कि आपके सप्लायर्स आपको क्रेडिट देते चले जाएंगे, राइट? इट इज अज्यूमिंग कि इस सेल को करने के लिए आपको अपने रिसीवेबल्स की डेज नहीं बढ़ाने पड़ेंगे और आपकी इन्वेंट्रीज नहीं बढ़ेंगी, आप उसको मैनेज कर लेंगे, तब जाके आपको 7.5 करोड़ रुपए लगेंगे इसके अंदर। तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कैन वी रिड्यूस आवर कैश टू कैश साइकिल? हमारे पास 3 लीवर्स हैं। पहला है इन्वेंट्री रिडक्शन, which is to reduce the lead time and to implement a replenishment based system. Yes, इस टाइप का सिस्टम हमारे पास है जिसके डिजायर्ड आउटकम मैंने आपको दिखाए थे। Reduce your debtors.
डेटर्स तो तभी होंगे जब मैं उनका प्रिफर्ड सप्लायर बन जाऊंगा. जो दे वांट टू डू बिजनेस विद अस. इफ यू रिमेंबर आवर बिजनेस गोल वाज people should want to do business with us. Then you will not have a debtors problem if you do. And we have to build ourselves. नहीं तो मैं कहीं से घर से पैसे कहीं ना कहीं से लेके आता रहूं, लगाता रहूं. ठीक है. लास्ट इज इंक्रीज क्रेडिटर्स. ये भी तब होगा जबकि मैं उनको बिल्कुल टाइम पे पे करूंगा, जिसके लिए मेरे को कैश टू कैश साइकिल ठीक चाहिए और मेरे को चिक चिक नहीं. आपके कस्टमर जब आपको चिक चिक करते हैं, आप उनको नहीं पसंद करते. जब आपके वेंडर के, आप जिसके कस्टमर आप चिक चिक करोगे, आपको भी नहीं पसंद करेंगे. दे विल नॉट सपोर्ट यू. दे विल सपोर्ट द नो चिक चिक कस्टमर फर्स्ट. दे विल सपोर्ट द वन हु pays on time first. We all know this. So the question is, one of the critical things in managing your operations is you have to get your cash to cash cycle right, and you have to keep it as low as possible. जितनी आप लो रखेंगे उतना ही आपको ग्रो करने के लिए आपको बाहर से पैसे नहीं लाने पड़ेंगे और इंटरनल ग्रोथ से आप मैनेज कर सकते हैं. ओके, देन लेट अस कम टू सेकेंड पॉइंट. ये गलती बहुत बिजनेसमैन करते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया. ये आपको जरूर कहीं ना कहीं पे चोट करेगी ये बात, और ये चोट होगी तो उसकी तकलीफ आप सह लीजिएगा और उस पर गौर कीजिएगा कि क्यों हो रही है तकलीफ. पहले चीज तो ये बताइए कि क्या आप, ये चैट बॉक्स में बताइए मुझे, क्या आप और आपका बिजनेस सेम है? कम ऑन गाइस, आर यू एंड योर बिजनेस द सेम? नो. ओके, नो. Okay, Gaurav, no. Okay, so we are getting no's from all the people. Nobody has said yes. Yes. The simple answer is no. आप ह्यूमन बीइंग है, आपकी ह्यूमन नीड है. आपकी कंपनी एक बिजनेस है या आपकी बिजनेस एक बिजनेस है, उसकी बिजनेस नीड्स है. आपकी ह्यूमन नीड्स है खाने की, पीने की, एंटरटेनमेंट की, सोने की, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट, एजुकेशन की, 75 चीजों की, हेल्थ की. इसी तरह से आपकी बिजनेस की नीड है, उसको ऑर्डर्स चाहिए, उसको कैश फ्लो चाहिए, बहुत सी चीजें चाहिए. तो हमें इनको अलग करना चाहिए. अपनी नीड भी मुझे फुलफिल करनी, बिजनेस की भी फुलफिल करनी है. अब हाँ, सो पहले तो लुक एट दिस सेपरेट. अब आप पहले ये डिटरमिन कीजिए कि आपकी बिजनेस की नीड. अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आप ये डिटरमिन कीजिए कि आपकी बिजनेस की क्या नीड है. और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जिससे तकलीफ वाला, आपको बिजनेस की नीड पहले करनी है. पहले आपको उसमें री इन्वेस्ट करना है जो कि उसको चाहिए. इसका एग्जांपल आपको एक मैं बताता हूं. आपकी बिजनेस, मान लीजिए आपका 50 करोड़ का टर्नओवर है, ठीक है जी, और आपका 4 करोड़ का प्रॉफिट है. एंड ऑफ द ईयर में आप ये असेस करते हो कि बॉस, मेरे को अगले साल मैं 30% ग्रोथ कर सकता हूं 15 करोड़ से. मेरी कैश टू कैश साइकिल ऐसी है कि मुझे उसके लिए मुझे 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. ठीक है, कैश टू कैश साइकिल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जिस भी चीज में मुझे 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. ठीक है, तो मेरे पास 1 करोड़ स्पेयर है अपने लिए और 3 करोड़ बिजनेस के लिए चाहिए मुझे. अब आपकी वाइफ जिद पे आ जाती है, ठीक है, कि नहीं जी मुझे तो घर बनाना है. ये आपको कोई मैं आता हूं, कहता हूं जी जैन साहब या मिस्टर सो एंड सो, ये आपको इतनी बढ़िया लैंड डील कभी मिलेगी नहीं. आपको भी लगता है यार इसमें तो बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं. ठीक है, अब आप आ गए दुविधा में. पॉइंट इज, आप इस सेकंड पे डिसीजन क्या लेते हो, इस पे ये डिपेंड करेगा कि आप फास्ट ग्रो कर पाओगे या नहीं. अगर आपने बिजनेस को डिप्राइव किया, आपकी ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी. आप प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बन जाएंगे, आप वेल्थी हो जाएंगे, आप बहुत सुख चैन की अच्छी जिंदगी करेंगे. लेकिन अब मेरी 50 करोड़ की कंपनी 500 करोड़ की नहीं बन सकती 5-6 साल में के अंदर. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. एंड लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. In 1978-79, one company hit the stands with a retail chain called Only Women. That company was called Reliance. और उसके बाद से they took off. By 83, 84, 85, they became stock market darling. Reliance का कोई भी issue होता था वो hundreds of time over subscribe होता था. धीरू भाई अंबानी जो है जितना मार्केट से पैसा चाहते थे उठा सकते थे. उनकी AGM स्टेडियम के अंदर होने लगी क्योंकि इतने लोग उनको आके सुनना चाहते थे धीरू भाई अंबानी को. लेकिन वो रहते कहां थे?
वो रहते थे हाजी अली के एक 3 बेडरूम फ्लैट में अपने 2 बेटों के साथ, मुकेश और अनिल, और फिर एक बेटे की शादी हुई। तो अब क्या करें, तो उन्होंने वहां पे कुछ मैनेज किया, फिर उसके बाद एक फ्लैट उसी बिल्डिंग में और खरीद लिया। ठीक है, उस समय रिलायंस पास इतने पैसे थे, इट वाज नॉट मटेरियल दैट एक्स्ट्रा फ्लैट। फिर दूसरे बेटे की शादी, फिर उन्होंने कर लिया, अब 3 फ्लैट हो गए इस बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, और कंपनी के 100 करोड़ की है, बट उन्होंने वो कर ली। फिर अराउंड आई थिंक इट वाज 89 और 90, अब उन्होंने कहा मेरे पास इतने पैसे आ गए हैं, फिर उन्होंने अपना घर बनाया। उन्होंने कफ परेड जैसी जगह में एक प्लॉट लेके 23 मंजिल की बिल्डिंग बनाई, जिसके अंदर 2 कॉमन एरियाज थे और 7-7 मंजिल एक एक फैमिली को, 7 स्टोरीज वर अलॉटेड। लेकिन वो कब बनाई, जब रिलायंस इतनी बड़ी हो गई थी कि उस 100 करोड़ को 500 करोड़ की जितने की भी वो बिल्डिंग थी, उसको बनाने के लिए जो पैसा था वो रिलायंस के मुंह में जी रहा था। उन्होंने तब नहीं बनाई जबकि उनके रिलायंस को ग्रोथ के लिए वो पैसा चाहिए था, उन्होंने तब बनाई व्हेन दिस मनी डिड नॉट मैटर। So please look at, I'm not saying don't build a house, I'm saying don't buy a car. All I'm saying is put your business need first. Only when you take care of your business will it take care of you. Okay, this ends our first section where we said build you take care of the present. Present है take करने के लिए कि और भी चीजें हो सकती हैं, but the 2 most important are that your operation must deliver टकाटक and your money should be such that it should keep funding it without any blockage. Your money should fund you should circulate, you should have your cash to cash cycle, your investments in place. Now we will go a bit faster because we started about 15 minutes late, so I will seek your indulgence for another 15 minutes or so, and I will take you through this. This one we will go faster because till you do those 2, these are only concepts. जैसे मैंने कहा था, आप एक सूत्र को पकड़िए, उसको एंड तक चले जाइए, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करते जाने से कुछ नहीं होगा। आप एक को पकड़िए, इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए, आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। सो प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, हमारे पास क्या होता है कि हमारे दिमाग में 3 चीजें होती है। एक वो स्पेस होती है व्हाट वी नो, मुझे पता है, मुझे गाड़ी चलानी आती है, मुझे टेनिस खेलनी आती है, मुझे कुछ करना आता है। एक होता है मुझे पता ही नहीं आता, मुझे हवाई जहाज चलाना नहीं आता, मुझे जो है समुद्र के अंदर स्कूबा डाइविंग करनी नहीं आती, मुझे बंदूक से शिकार करना नहीं आता, पता नहीं क्या क्या चीजें, बहुत सी चीजें, हजारों चीजें, में रेसिंग कार नहीं चला सकता, बहुत सी चीजें जो मुझे नहीं आती, ये मुझे पता है। प्रॉब्लम यह है कि दिस इज ओनली 20%, द रेस्ट ऑफ द 80% इज we don't know that we don't know. हमें पता ही नहीं कि ऐसी चीज होती है। ठीक है, जो हमें पता है कि ये होती है वो पता है, ये चीजें वो हमें पता ही नहीं ऐसी होती है। ठीक है कि जी कि कई बार आप कहते हैं ना, अरे यार ये ऐसा कैसे हो गया, हमें तो पता ही नहीं था ऐसा होता है। आपको इतने वीडियोस आते हैं, आपको बिजनेस परफॉर्मेंस में आता है, 75 जगह आता है, ये ऐसा कैसे हो गया। ठीक है जी, टेस्ला कैसे बनी, एलॉन मस्क कुछ भी कहीं भी नहीं था, इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया, पता ही नहीं, हमें नहीं पता कैसे बन गया। क्या आपको पता है, मुझे तो नहीं पता कैसे बन गया। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज कि देयर आर थिंग्स वी डोंट नो, लेकिन जहां पे वो नहीं होते हैं, उस चीज को समझने के लिए हम करते क्या है, हम क्या करते हैं, हम कुछ अजम्पशंस बना लेते हैं। अरे यार वो तो अमेरिका है, वहां तो मस्क ऐसा बन सकता था ना, अरे यार उसने तो ये अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर ली थी ना। ठीक है, अगर वो हिंदुस्तान भी अमेरिका था तो हम भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये करके फिर हमारे बिलीफ बन जाते हैं, जी ऐसी चीज तो अमेरिका में होती है, हिंदुस्तान में पॉसिबल ही नहीं है। इस टाइप के हम बिलीफ बनाते हैं। क्या जो हमारा स्लोगन है एमएसएमई टू एमएनसी, हम कहते हैं यार जैन साहब ने ये स्लोगन तो अच्छा निकाला एमएसएमई, लेकिन कितनी आपने देखी, ऐसा हो सकता है क्या, आप उसको नहीं देख रहे जो उसने किया। राइट, तो क्वेश्चन है, हमारा बिलीफ हो जाता है कि हम तो यहाँ है, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते। कितनी कंपनी हमारे, एक जब मैंने जस्ट कंसल्टिंग चालू की थी, मैं आपको एक एग्जांपल फिर क्विकली देता हूं। एक हमारे भाई साहब थे, हमसे बड़े थे, वो जानते थे, मैंने बहुत सालों से जानते, बिजनेस के बारे में उनके कुछ नहीं जानता। तो जब मैं कंसल्टेंट था, मेरे को थोड़ा सा वो था, जिज्ञासा थी, तो मैंने उनसे पूछा कि जी भाई साहब क्या कि मैं एक्सपोर्ट करता हूँ रॉट आयरन फर्नीचर। मैंने कि कितनी बड़ी कंपनी, मेरी 7 करोड़ की कंपनी। मैंने कहा अच्छा, आई थॉट
उनकी लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया थी, पीछे से पैसा था उनके पास, तो आई थॉट कि ये इनकी कम से कम 40-50 करोड़ की तो होगी। मैंने कहा अच्छा, मैं थोड़ा शॉक हो गया। मैंने कहा भाई साहब, इसको आपको इसको बढ़ाने के लिए आपकी कंपनी, आपकी इसकी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? फला फला कंपनी जी, वो मैंने कहा उसका कितनी, 300 करोड़ की। तो भाई साहब, अपनी कंपनी इतने साल से आप चला रहे हो, 7 करोड़ से 20 करोड़ तो नहीं पहुंचा सकते 2-3 साल के अंदर? क्या लगेगा उसके अंदर? व्हाट विल इट टेक, राइट? उनका जवाब सुनिए, हो ही नहीं सकता, बिना ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा भाई साहब क्यों नहीं हो सकता? तो उन्होंने कोई कारण बताया। अब उस दिन मैं थोड़ा मूड में आ गया, जब उनका ऐसा रिएक्शन सुना, थोड़ा नॉर्मली कुछ जिद्दी मूड में नहीं रहता, लेकिन वो आ गया, मैंने उनकी बात काटनी शुरू कर दी। अब वो एक स्टेज पे आए, इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं रहा, तो कहते हैं यार तुमको पता है कि ये जो है मेरी फैक्ट्री भिवाड़ी में है, भिवाड़ी में जहां की रोड ऐसी है, वहां पे हो सकता है क्या? वहां पे ग्रो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ग्रो। क्वेश्चन इज, इस तरह से हम अपनी बिजनेस में, ये हंसी वाली स्टोरी लगती है, बेवकूफी की स्टोरी लगती है, लेकिन हम सब ने जिन चीजों के बारे में पता नहीं, वी डोंट नो दैट वी डोंट नो, उसके अंदर हमने अपनी जिंदगी को समझने के लिए, करने के लिए ऐसे बिलीफ्स बना लिए हैं और वो घर कर गए। फिर जब कोई बंदा आके कहता है सर ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, ठीक है, कि पहले बिजनेस में पैसे लगाओ, फिर उसके बाद अपनी प्राइवेट उसको पैसे बिजनेस में निकालो, कहते हैं जी ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, सो हमारे बिलीफ बन जाते हैं। ये मैं इसको सबको स्किप कर दूंगा, डिसएम्पावरिंग बिलीफ एंड पावरिंग बिलीफ, ओके। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वी आर द सोर्स, ओके। आपकी कंपनी में, उस कंपनी को चलाने वाले राजा दशरथ आप ही हो, आप ही तय करोगे कि आपके अयोध्या में क्या होने वाला है। राम कहां पढ़ने जाएगा, कौन से स्वयंवर में जाएगा, ठीक है, और उससे हम क्या वादे मांगेंगे, ये सब चीजें आप तय करोगे। तो आपकी बिलीफ्स विल रन द सिस्टम। सो आपको अपनी बिलीफ्स क्या है, वी विल वर्क ऑन इट, इफ वी वर्क टुगेदर वी विल वर्क ऑन दैट। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप अपनी बिलीफ्स को ग्रोथ डायरेक्शन की तरफ देखिए, ठीक है। अगर आप किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बट लेट्स मूव ऑन, ओके। नाउ रिमेंबर, एक कहावत है, ये मेरी किताब में भी ये एक दी थी मैंने, मुझे बहुत अच्छी लगी। इफ यू बिलीव यू कैन, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो चांस है कि आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बिलीफ है कि नहीं कर सकते, कि जी भिवाड़ी में रह करके मेरा ग्रोथ नहीं हो सकती, तो आप डेफिनेटली नहीं ग्रो करोगे। अगर आपका बिलीफ ही कि नहीं ग्रो कर सकते, आप नहीं करोगे, क्योंकि बिलीफ वो इग्निशन स्विच है जिससे आपकी गाड़ी चलेगी। तो आपको पहले अपने बिलीफ्स को देखना पड़ेगा जब आप ग्रोथ के लिए प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। सेकेंड थिंग, मैंने आपको जैसे बताया था कि इकोनॉमिक टाइम्स का, कि उन्होंने देखा 3000 कंपनियों में से बीएसई की जो टॉप कंपनीज थी, उसमें 20 साल पे केवल 23% ने हर साल अपना प्रॉफिट बढ़ाया। वो तो हर सीईओ का है प्रॉफिट बढ़ाना है, हर बिजनेस मालिक का है, प्रोफेशनल सीईओ का है, लेकिन कर भी नहीं पाते, ठीक है। देयर इज एन इशू समवेयर देयर, राइट? एंड इशू इज कि ये जो पूरी मेरी एक वैल्यू चेन है, फ्रॉम मार्केटिंग टू सेल्स टू एटसेट्रा टिल फाइनली वी कलेक्ट कैश, ठीक है, इसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इसको करने के लिए हमने हर चीज का एक साइलो बना दिया है, और फिर वो साइलोज आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनको ये काम करने के लिए तो ठीक है, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करे, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग करे, फाइनेंस वाला फाइनेंस करे, लेकिन गोल हम उसके हिसाब से नहीं सेट कर सकते कि तेरा ये गोल है, तेरा ये गोल, अलग अलग से नहीं चलेगा। सो इंपॉर्टेंट इशू इज ये कि हमारा आउटपुट डिसाइड होगा सिंक्रोनाइजेशन से। ये नाव जो है, अगर ये रेस में जा रही है और हर ये जो 4 लड़के हैं, ये चारों लड़के अपनी मर्जी के हिसाब से चलाने लगे, ठीक है, तो ये नाव तो वहीं चक्कर खाने लगेगी, हो सकता है डूब जाएगी। सो द क्वेश्चन इज दैट वी नीड सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ऑल द फंक्शंस, और वो हमारा आएगा थ्रू अ कॉमन गोल, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि हम यहां बैठे हैं, हम परचेज डिपार्टमेंट है, और तू भैया फाइनेंस है, नाव तो तेरी तरफ से, पैसे तेरे पास नहीं, मैं क्या करूं, ठीक है। नाव तो पूरी डूबेगी बॉस, डूबेंगे तो सब साथ डूबेंगे, उठेंगे तो सब साथ उठेंगे, रेस खुद ही जीतेंगे। सो द क्वेश्चन इज दैट we have all everything, but synchronization is missing, and the best way to do synchronization is through goals. Now these are examples which I will skip, okay, but I think you can intuitively understand, or maybe I can quickly take
no, I will skip these examples. Okay. Now, एक्शन हमें क्या लेने हैं? सबसे पहला एक्शन है इज टू सेट एन, ये गोल जो सेट करेंगे वन फॉर ऑल, ये क्या गोल होगा? ये होना चाहिए एक एम्बिशियस गोल। एम्बिशियस गोल हम किसको बोलते हैं? ये एक टर्म है, आप उसको कुछ ही और नाम से बोल लो, उसको चांद सितारा गोल बोल दो, उसको सूरज पानी गोल बोल दो, उसको जो भी बोल दो, इट डजंट मैटर। एम्बिशियस गोल वो है कि अगर आप सबसे बोले, आप खुद अपने से भी पूछे, आप कहोगे बेस्ट से बेस्ट, बेस्ट से बेस्ट, बेस्ट से बेस्ट मैं 3 साल में क्या कर सकता हूं। ठीक है, जो भी आपका फिगर आए, आप कम से कम उससे दुगना तो ले लो, आप मतलब उससे ज्यादा लो, जो कि आपको लगता है कि इस जो बेस्ट से बेस्ट से बेस्ट से करके उससे आप ऊपर कर ले लो, वो हुआ जो आपको दिख रहा है कि इसको बेस्ट टू बेस्ट करके कर सकता हूं, उसको हम एम्बिशियस गोल नहीं मानते, उससे ऊपर के गोल को मानते हैं, बिकॉज दैट ड्राइव्स चेंज। You need an ambitious goal because it drives change. That which you can see does not drive change. That which you can't see, then you will have to access I don't know that I don't know side of your business. आप अपना, हम तो कहते हैं भैया जब अपने क्लाइंट्स को कि हम तो, हमारी तो गणित जो है वो क्लास 2 में फेल हो गई थी, आप अपना आज का रेवेन्यू लिख दो, मुझको केवल 2 4 से 10 तक का पहाड़ा आता है, परसेंटेज मुझे आती नहीं, वो 2 फिगर लिख दो, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन का लगा दो, वही मेरा गोल है। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आपकी कंपनी 5%, 10%, 15%, 20% प्रति वर्ष ग्रो कर रही है, तो आप 3x in 3 years ले लीजिए, दैट विल बी गुड गोल, दैट इज व्हाई द टॉपिक इज 3x in 3 years। अगर आपकी कंपनी 40-50% ग्रोथ कर रही, देन प्लीज गो बैक टू द डेफिनेशन ऑफ एम्बिशियस गोल एंड टेक फ्रॉम देयर। ये नहीं कहो कि इजी गोल ले लिया, 50% तो कर ही रही है, तो 3x हो तो आ ही जाएगी, क्या दिक्कत है? Okay, once you have the goal, then you have to identify the leverage point. Okay, कि मैं क्या करूं, what, ठीक है, अगर आप कहेंगे कि ये एम्बिशियस गोल आपने रख दिया, मेरी कंपनी के आज टर्नओवर 30 करोड़ है, मैंने कहा जी मैं 3 साल के अंदर 100 करोड़ पे जाना चाहता हूं। अब आप लोगों से पूछोगे क्या करना है या क्या रुकावटें आएंगी इसमें, तो अगर आपकी कंपनी 30 करोड़ की, मैं आप 10 लोगों को बैठा लोगे अपने साथ में, सेल्स वालों को और प्रोडक्शन वालों को, आपको गारंटी करता हूं 50 से 100 आइटम की लिस्ट आ जाएगी। अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते, अब उसमें से हमको खोज के निकालना है कि इसके अंदर रूट कॉज क्या है, बेसिक कॉज क्या है। ठीक है, सो कॉल योर टीम, आस्क देम टू लिस्ट डाउन, आपको इतने आइटम मिलेंगे, इसको हम इस तरह से कुछ ऑर्डर कर देते हैं, जो हम अपने क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं करने में, जब हम उनके साथ काम करते हैं, कि इस समय अगर मेरे को प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास कैश शॉर्टेज है और प्रॉफिट भी नहीं है, कैश भी नहीं, प्रॉफिट भी नहीं है। अब ये उससे हम कहते हैं कि जी कैश शॉर्टेज के लिए कैसे चला, कि क्रेडिट की वजह से है, ये इसकी वजह से है, ये इसकी वजह से है, और फिर लास्ट फाइनली आया कि जी मेरा रूट कॉज ये है कि मेरी लेट डिलीवरीज है। कहने का मतलब कि अगर मेरी लेट डिलीवरीज मैंने ठीक कर दी, तो मेरा डिससैटिस्फैक्शन कम हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, मेरे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर मिलने शुरू हो जाएंगे, कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन और अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे तो मेरी ऑर्डर एडिक्वेट होनी शुरू हो जाएंगी, ऑर्डर एडिक्वेट हो जाएंगी तो मेरे को क्रेडिट कम देना पड़ेगा, प्राइसेस इस तरह से करके मेरा हो जाएगा। दिस इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन। जब हम इसको बनाते हैं तो उसमें ऐसे कम से कम 50, 60, 70 बॉक्सेस होते हैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो हमें इस पे एक्ट करना होता है, और कोई यहाँ पे अगर कोई इंडिपेंडेंट टंगा है उस पे एक्ट करना होता है। जब ये सब हो जाता है, देन वी कम टू द थिंग ऑफ ग्रोथ। अब अभी तक हम प्रिपेयर कर रहे थे, पहले हमने अपना ऑपरेशन ठीक किया, फिर हमने अपने को मेंटली, अपनी टीम को मेंटली प्रिपेयर किया, और हमने लीवरेज पॉइंट को खोजा। ठीक है, नो, मैं यही इतने में ही आपको से मार्केटिंग के बारे में बताता हूं। ये अब हम हायर ऑर्डर में जाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, most companies, by the way, that I know do not do marketing as per this definition. Aim of marketing is to know and understand the customer so well that the product or service fits him and sells itself. Ideally, marketing should result in a customer who is ready to buy. मतलब हर पॉइंट पे मैं उसको क्या कम्युनिकेट कर रहा हूं, उसको क्या एश्योरेंस मिल रही है, कैसे काम हो रहा है। क्या बहुत से बिजनेस ओनर्स मैंने देखा, वो तो कस्टमर के पास जाते ही नहीं, वो ऑपरेशन में ही फंसे रह जाते हैं। वो कहते हैं ये तुम्हारा काम ही नहीं, सेल्स में रख लो, वो किसी से बेच के आ जाएगा। बहुत ऐसा नहीं होता। हमें अपनी मार्केटिंग अगेन आपको करनी नहीं, आपको डिजाइन करनी है, उसको इंश्योर करना है। ठीक है, क्या करना है कि कौन सा, किस कस्टमर को,
हर आदमी इज नॉट अ गुड कस्टमर, विच आर सपोज टू बी गुड कस्टमर, जिनको मैं सर्व करना चाहता हूं, ठीक है। उन कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को ठीक से समझना, उन कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को ठीक से समझना, उसके हिसाब से अपना एक प्रोडक्ट, अपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन, अपनी एक प्राइसिंग, एक अपनी कम्युनिकेशन सब बनानी है मुझे, ठीक है। और उसके बाद अब सेल्स का काम आता है कि एक्चुअली उस कस्टमर को ढूंढना और उसको कम्युनिकेट करके ऑर्डर बुक करना, और फाइनल गोल क्या है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। ये सब कर रहे हैं और क्या प्रॉफिट नहीं कमाए तो वो मार्केटिंग बेकार है। अगर आपके कस्टमर वाहवाही नहीं कर रहे, बार बार आपसे नहीं खरीद रहे और आपको प्रॉफिट नहीं दे रहे, तो वो मार्केटिंग बेकार है। मार्केटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम या इशू, अब चैलेंज भी है, और अगर आप इफ यू गेट इट राइट देन इट्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इट्स नॉट ओनली अ साइंस, मेनी ऑफ द थिंग्स जो अभी तक हमने बात की दे आर साइंस, बट दिस इज एन आर्ट ऑल्सो। इसमें हमें क्रिएटिविटी अपनी यूज करनी पड़ती है टू फाइंड गुड सॉल्यूशंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्केटिंग हो गई। अब कस्टमर आ गया, वो खरीदने को तैयार है, बॉस ये कंपनी बढ़िया, इससे काम करना है, लेकिन किसी की जेब से पैसा निकलवाना आसान काम नहीं होता। मुझे उसको एक ग्रेडेड प्रोसेस में, अगर आप मैकडोनल्ड के दुकान में जाते हो या स्टारबक्स की दुकान में जाते हो, तो जैसे वो चाहता है, पहले आप यहाँ जाते हो, फिर आप उधर जाते हो, फिर उधर जाके काउंटर पे ऐसे खड़े होते हो, फिर ऐसे पैसे देते हो, फिर आप वहां से कलेक्ट करते हो। उसने एक प्रोसेस डिजाइन किया हुआ है अपना। तो इसी तरह से हमें अपना सेल्स का भी प्रोसेस डिजाइन करने पड़ेगा। बंदे को लेकर छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा, मार्केटिंग नहीं करोगे तो वैसे ही कुछ नहीं होगा। और अगर मार्केटिंग करने के बाद सेल्स प्रोसेस ने डिजाइन किया तो भी कुछ नहीं होगा। तो इसमें आई थिंक द एरोज हैव गॉन मिसिंग। ये तो ये मान लो किसी कंपनी में एक स्टेप्स है ये, तो उसके लिए ये टाइप की चीजें मुझे करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये दिस इज जस्ट एन एग्जांपल है, ये आपके कंपनी के लिए नहीं, आप अपनी कंपनी के लिए अपना खुद बनाओगे, बट दिस इज समथिंग यू नीड टू मेक एंड इम्प्लीमेंट इन योर कंपनी। Now, I'll start ending this with telling you some results, some quick results, which we got by implementing in different companies. And I'm telling you from my life experiences, and I think from customer experience as well, from my client experience. हमारी ये IT कंपनी थी, अपने शहर की फर्स्ट IT कंपनी थी। हमारे सारे हमने अपने कंप्यूटर्स लगा रखे थे वगैरह वगैरह। रिजल्ट ये था कि जब कंपटीशन आया, किसी ने कंपटीशन की बात की थी, उनके कंप्यूटर 1/3 कॉस्ट के थे, यानी कि उनकी सारी कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, ऑपेक्स कॉस्ट 1/3 के थे। कंप्यूटर 3 टाइम फास्टर चलते थे, तो कैपिटल कॉस्ट 1/3 हो गई और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी उनकी 1/3 हो गई। अब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, तो हमने क्या किया कि हमने एक आउटकम विजुअलाइज की कि हम उनको सर्विस देंगे जिनके लिए मिशन क्रिटिकल है कंप्यूटिंग। उन बंदों को खोल खोल के, एंड वी सेड वी विल हैव 24/7। वैसा वो हमारा कंपनी जो थी वो होली दिवाली किसी समय 1 मिनट के लिए बंद नहीं होती थी, और 0 एरर से हम लोगों को देते थे। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि कितना भी कंपटीशन आया, कितना भी उनका कॉस्ट एडवांटेज था, तो कोई हमारे को तकलीफ नहीं थी। वी वर बाय फार द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल। ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर, इसके अंदर चलो इसको हम अच्छा इसको कर लेते हैं। ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर हमारी मेनली सेल्स ओईएम को थी, और ओईएम में ऑटो में क्या होता है, आपका मार्केट शेयर फिक्स कर देते हैं। तो उन्होंने सबसे बड़ी कंपनी का मार्केट शेयर फिक्स कर दिया एट 60%, हमारा 27%, एक का 13%। अब ये जब उसमें हमने क्या किया कि हम उस बंदे की प्रॉब्लम क्या होती है कि रोज सेल्स चेंज हो जाती है, सेल्स चेंज हो जाती है तो प्रोडक्शन चेंज हो जाती है, प्रोडक्शन चेंज हो जाती है तो परचेस चेंज हो जाती है। तो परचेज वाला जो है वो पागल बना रहता था, और एक परचेज वाला 25 30 कंपोनेंट्स देखता था, और हर के 3 महीने तो 100-150 आदमी को वो कहां से माल इकट्ठा करे। तो हमने ये अपनी आउटकम डिजाइन की कि उस बंदे को हम सेटिस्फाई कर लेंगे, ठीक है, कि जो भी उसको हम प्रॉमिस करेंगे वो हो जाएगा। रिजल्ट ये हुआ कि जो बिना ऑफिशियली हमें 20 हमारा शेयर जो था 27%, वो इनफॉर्मली 45% हो गया। तो हमारा ओईएम का मार्केट शेयर जो है वो बढ़ गया, ठीक है। और कंपटीशन को पता ही नहीं लगा क्या उनके पैर के नीचे से कहां से धरती निकल रही है, उनको पता ही नहीं लगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे वो हैंड टूल वाले सप्लायर कस्टमर की फिर से हम बात करते हैं। इनका डोमेस्टिक सेल्स जो था वो पिछले साल से 15 करोड़ था, ठीक है। बेसिकली उनके ऑर्डर फुलफिल नहीं होते। अगर मैं बैंगलोर में डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं माल लिखाता था,
90% माल आ जाता था, 10% की हवा नहीं रहती। इससे मेरा क्या होता था, जो मेरा कस्टमर आगे से आता था वो टूटता था, वो बगल वाले के पास जाता था माल लेने, तो अभी मेरे लिए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक था। तो हमने उसको कहा कि नहीं जी, हम आपका ये 99% फिल रेट देंगे। और ये इस कंपनी में है सर, इन लोगों के 10,000 SKU हैं, 10,000 से ज्यादा SKUs हैं, जिसमें 500 ये खुद बनाते हैं और 9,500 वो इंडिया से और चाइना से आउटसोर्स करते हैं, कंटेनरों में माल आते हैं। ठीक है, फिर भी वी कुड एंश्योर 99%। रिजल्ट क्या हुआ, पहले साल में 15 करोड़ से 27 करोड़, यानी 70% ऑर्डर्स मेरे बढ़ गए। अब पॉइंट ये है कि ये सब रिजल्ट्स अगर पाने हैं आपको, तो आपको हर स्टेप में इंप्लीमेंट को डिजाइन करना पड़ेगा और इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। शुरू में लेबर पेन्स होंगी, हमको वो बेयर करनी पड़ेंगी, उसके बाद हमको सुख मिलेगा। ठीक है, तो शुरू में मेहनत है, लेकिन कब तक मेहनत करेंगे, जब तक कि मेरा ऑपरेशंस मिलिट्री ग्रेड ना बन जाए, जब तक मेरा ग्रोथ इंजन मिलिट्री ग्रेड आपको याद है, जो कि फेल नहीं कर सकता, जहाज गिर नहीं सकता, पायलट ब्लाइंड नहीं हो सकता। ठीक है, आपका काम एग्जीक्यूशन करना नहीं है, आपका काम जो है स्ट्रैटेजीज और सिस्टम्स बना के इंप्लीमेंट करना है। इस पे आप ध्यान दें, और जितना आप अपने ऑपरेशंस को इंप्रूव करते जाएंगे, उतना ही टाइम आपका फ्री होता जाएगा, जो मैंने फर्स्ट चीज बताई थी आपको। ठीक है, आपका टाइम फ्री होता जाएगा ये सब करने के लिए। क्विक रिकैप, ओके, तो 7 steps were: fail proof your operations, manage your cash, prepare yourself, create one goal for all, आइडेंटिफाई द लीवरेज पॉइंट, कि कौन से ऐसा पॉइंट है जिसमें एक चीज को पे फोकस करके उसको बढ़ाने से एकदम से बहुत सारी चीजें कंपनी में इंप्रूव हो जाएंगी और टेक ऑफ हो जाएगा, हमारा हॉकी कर्व ग्रोथ में चले जाएंगे हम। फिर फाइनली गेट द मार्केटिंग राइट। सी, इफ यू हैव नो मार्केटिंग, देयर इज नो पॉइंट शाउटिंग एट योर सेल्स पीपल, यू हैव टू गेट द मार्केटिंग राइट। मार्केटिंग डज नॉट नीड ब्रोशर्स एक्सेट्रा, मैंने मार्केटिंग बताई थी आपको, टारगेट सेगमेंट कैसे फुलफिल करना है, एवरीथिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट, पैकेजिंग, एवरीथिंग, and then finally design your sales process. So guys, that brings me towards the end of my presentation. Can you please share with me your biggest takeaways in the chat box? आपका एक एक पॉइंट प्लीज हर आदमी बता सकता है कि what did you gain out of this? What did you get? Just one thing, something new which you learned today. Can you tell, please? Guys, friends, chat box में please. Think big and explore, okay? So think big and explore. S0. Sorry, what is S0, please? We have to be on the system, not in the system. Very good. Go out of comfort zone. Structured approach to achieve. CTCC, very important. Superb, superb. Okay, guys. Thank you for that feedback. Now let me move to the towards concluding. Okay, tell me something. Now here I need your positive thing, right? Did you learn something new today? Did we learn something new today? Come on, guys. Let's go through this quickly. Yes. Did we learn something new today? Come on. We didn't learn something new today. Yes. Okay. We learned something new today. Okay, guys. Sorry, when I say guys, I'm addressing the ladies also. It's just a term which encompasses men and women both. Did you get some value? Did you get an aha moment anytime during the presentation? Did you get some value out of this, spending this 1.5 hours here? Come on, guys. Yes. Okay, Navneet, okay, Suresh, okay. Did you learn something powerful that nobody else is teaching you? Yes. Did you learn something which nobody else is teaching you? Okay, that's so you have something new which you really learned. Are you more confident that there is a way out, that I can grow? जो मेरे को growth में दिक्कत आ रही है कि जितना मैं चाह रहा हूं उतना नहीं हो पा रहा. Do you feel that there is at least a way out? कैसे करेंगे, कितना टाइम लगेगा, but है, एक रास्ता है. I don't know that I don't know से आ गया. I know that there is a रास्ता. See, this is the bringing out from I don't know that I don't know to I know that I, एक रास्ता तो है. अब उसको एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, करेंगे, बट है एक रास्ता. ओके, सॉरी.
Okay, would you like this type of results in your business? जो मैंने आपको share किए थे बहुत सारे results of different companies, of different clients, of PGT, of my personal achievements, etc. Yes, there is a way. Okay, would you like to have such results? Would you like to have such results? Come on. I want an answer from everybody, because the rest of the presentation is only for those, the ending of the presentation is only for those who want such results for themselves. So I'll address them only. Yes, okay, guys. So let's move on. Now, if that is the case, you have two choices. If you want these kind of results, you have two choices. The first choice is, okay, the first choice is that do it yourself. Can you do it yourself? You can certainly do it yourself. ऐसा कोई मैनेजमेंट में रॉकेट साइंस नहीं होता. बहुत से टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, इंटरनेट पे बहुत है. आपने आज के सेशन में कुछ नोट्स लिए होंगे. यू कैन सर्टेनली ओवरकम योरसेल्फ. रास्ते में हर्डल्स आएंगी, आपको उसमें टाइम लगेगा, आपका पैसा लगेगा, ठीक है, मिस्टेक्स करेंगे, दाएं बाएं जाएंगे. हो सकता है जो हम 3 साल में पहुंच सकते हैं वहां 6, 7, 8 साल में पहुंचे, ठीक है, लेकिन तरीका है, आप कर सकते हैं. दूसरा तरीका यह है कि यू कैन हैव मी बाय योर साइड. आप मेरी, जो मैंने 1980 में काम करना शुरू किया था, तो जो उसकी मेरी ये 42 इयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है, 11 साल का कंसल्टिंग का एक्सपीरियंस है, 18 साल का सीईओ का एक्सपीरियंस है, उसका एडवांटेज लें और हैव मी बाय योर साइड, गाइड यू थ्रू सो दैट यू गेट एवरीथिंग राइट द फर्स्ट टाइम. डू इट फास्टेस्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम दाएं बाएं एंड मनी दाएं बाएं हियर एंड देयर. ओके. एंड सेकेंड थिंग इज कि जब आप इंप्लीमेंट करने जाओगे, emergencies and urgencies will happen. Okay, that is why it is important to have somebody by your side कि वो आपको विचलित नहीं होने दे. ठीक है, नहीं तो कितनी बार होता है, कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने किए हैं, कितने इंप्लीमेंट किए, ठीक है, क्यों? क्योंकि हम विचलित हो जाते हैं. हमारा इंटेंशन हमेशा अच्छा होता है, वेट हम घटाना चाहते हैं, लेकिन उसका डिसिप्लिन, जब तक मैं योगा करना चाहता था, जब तक मैंने योगा ट्रेनर नहीं बुलाना शुरू किया, तब तक वो मेरा होके नहीं देता था. कोई ना कोई मेरे को एजेंसी आ जाती थी. अब नहीं आती, अब वो आके खड़ा हो जाता, मैं करता हूं. सो my offer to you here is that, and this is meant, please understand, I'm not joking, this is meant, I have different things for people who have smaller organizations, right? But right now I'm addressing those people who directly employ 100 people or more. Okay, whether you are a manufacturing business or service business is fine. Okay, I am offering a 90-minute discovery session with me, जिसमें find what is preventing you from growing rapidly, design your visualized outcome for the field proof operations, and identify all the improvements and foundational systems which you require to go there. The question is कि आप मुझे ये बताओ, and I want an answer in the chat box, कि बेसिकली आपकी बिजनेस की ग्रोथ की कुंडली जो है वो कहां पे रुकी, उसके अंदर कृपा कहां पे रुकी है, कौन सी चीज अड़चन दे रही है आपकी बिजनेस की कुंडली को, में ग्रोथ के रास्ते में क्या चीज आ रही है, कौन सा राहु फंसा हुआ है वहां पे. अगर आपको केवल इतना पता लग जाए, व्हाट डू यू थिंक इट्स वर्थ, व्हाट डू यू थिंक इट इज वर्थ टू यू. टेक अ फिगर विच इज मीनिंगफुल फॉर यू. 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, प्राइसलेस. व्हाट इज इट वर्थ टू यू? 50 लाख, whatever it is, 500 crores, 200 crores, 100 crores, 50 crores, 30 crores, 2 करोड़. Come on guys, what is it worth to you? अगर आपको ये पता लग जाए कि आप जो ग्रो करना चाह रहे हो, आपकी ग्रोथ कहां पे अटकी हुई है, किस जगह अटकी हुई है, तो what is it worth to you? Priceless, invaluable. Okay, priceless, invaluable. Okay, guys, let me tell you, I've got only 2 answers, but let me tell you these answers are absolutely right. I'll give you one small story to illustrate it. देखिए, हमारे एक फ्रेंड है, ठीक है, तो हमारे एज ग्रुप के हैं और नेचुरली सिमिलर. उनका बेटा अबाउट 28 years old, तो उसको ना कुछ दिनों से कुछ हल्का फुल्का कफ हो रहा था, सब वो भी इग्नोर कर रहा था, कुछ ज्यादा नहीं कर रहा था, सब इग्नोर. फिर एक दिन उसकी रात को जरा थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब हुई,
ठीक है। तो क्या हुआ कि जी उन्होंने कहा कि ये जी बगल में वो शर्मा जी है, वो तो अपने उनको बुला लेते हैं, ठीक है, उनसे राय करते हैं, उनसे राय की। इसी तरह से एक दो और जानकारों से राय की, बिकॉज इट वॉज मिडिल ऑफ द नाइट 2 o'clock। अब क्या हुआ कि तबीयत खराब होती चली गई, सुबह से 6-7-8 बजे वो लोग दौड़े दौड़े फिर अस्पताल लेके गए। अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम, तो हम अपनी बिजनेस के साथ भी कई बार यही करते हैं, या तो घरेलू नुस्खा लगा लेते हैं, या जो हमारे कॉन्फिडेंशियल लोग होते हैं उनसे हम पूछ लेते हैं कि भाई ये तो अपने हैं, ये बताएंगे। तो ये घरेलू नुस्खा, और ये हम वो चीज कर रहे हैं कि हम अपनी बिजनेस को कई बार इस प्रोसेस में किल करना शुरू कर देते हैं। वी आर नॉट सीकिंग हेल्प फ्रॉम वेयर वी शुड सीक हेल्प। तो द क्वेश्चन इज कि अगर आप सही जगह से करें, इट इज प्राइसलेस। If you get the right thing कि मेरी कहाँ रुकी हुई है, it is priceless. Now, my offer to you is, one second. You can book a call with me, okay, by going to this link, bit.ly, book a call with Vinay. bit.ly/book a call with Vinay. All small letters, book a call with Vinay. Okay. It costs only 50,000 rupees plus GST. That's the value of my time. That's what I bring to the table. From all the examples, what I have done for my clients and for myself, you can probably relate that, as you said, it's priceless. So it is going to cost you only this much, a 90-minute discovery call. But since I am part of BGMF, and Jain Saab has specifically invited me, you've been a good audience, you spent 1.5 hours with me, I will do a special for you, right? You can go and book a call. There's a form there, you can fill that in, and it'll cost you only, this is a special price for just now. It will not be open beyond the next 20 minutes, 30 minutes, right? I think it's a 30-minute limit on that. And so please go there, book your call, and then I will set up a time with you and spend time with you. Okay? Now, guys, look at this. Look at this, what this gentleman had to say. Okay? Vinay Agarwal of Powerful Cooling Towers, a 1,500 crore company, highly profitable. Vinay Agarwal consulted with our company to help with our project management, etc. He suggested and implemented a framework which helped to streamline blah blah and debottleneck. Vinay's knowledge and experience and ability to impart performance improvement techniques will be of great help to many a business. This is a company which has a 70% market share in their this thing. He is himself an Harvard MBA and etc. Okay. Now, this is Mr. Satish Kaura. He is the first person to be awarded Distinguished Alumnus by IIT Kanpur, ahead of Narayan Murthy and others. He is a multi-award winner. He is a Padam Shri. He's chairman of Samtel Business. Vinay is my go-to person when stuck with a major business issue. He has vast experience in different business situations and problems. He comes with refreshing yet practical ideas, which mostly help us find a direction. This has been of immense help in achieving all our goals. Okay. Samtel is the company where we did this display system for the Sukhoi aircraft where we supplied. So, guys, there's nothing to wait for. Okay. Please go book your call with me and then we will proceed from there. Now, I had promised a free gift. Okay. Here is a gift. Last, who wants a gift? Can you please put in the chat box who wants a gift? Chat box, please. Who wants a gift? Come on, guys. Who wants a gift? Certainly, me. Okay, who wants a gift? अभी दो लोगों को चाहिए, मैं तो मेरे पास 3 गिफ्ट है, मैं 2 लोगों को कैसे दूं? Come on, guys. There's a gift. Okay. Everybody. Okay, we have 6, 7. What? Anybody else wants a gift? Anybody else? Okay. Let me unveil the gift. First is, if you book this call, it will be no questions asked, full refund. Okay. Second thing is a free gift. Exclusively, I'm going to make 3 slots available for free. Okay. So please go now, don't wait. Okay. I'm very grateful for BGMF to have you people here. I'm going to offer this lovely audience
3 free slots, okay, available. So please go to bit.ly/book a call with Vinay, BOOKACALL with Vinay, all in small letters. Please do it now, because once the meeting closes in the next 10 minutes, this will close. So uske baad raat gayi, baat gayi. So please do it now. I'm going to be here for a couple of minutes, right? Please note this, take a screenshot, take a photo, bit.ly/book a call with Vinay. You go there, there's a small Google form with your name, address, so that I can contact you, etc. And then we can be in touch. Guys, thank you very much for being such a lovely audience. Please book your call. Huh? I see 1 person, 2 persons have booked the calls. Please book some more calls. Yeah, I think it'll go. And if there are more people, I definitely want to take those people who satisfy the criteria. If you are not 100 people, please do not book the call. We will have other tools for you in other sessions. Thank you very much. These are my contact numbers. You can always write to me directly about any issue you want to discuss. Thank you. Dr. Amita, thank you. Thank you, Vinayji, for such an exhilarating session. From hockey curve growth to profit growth, transformation, example of McDonald's, Mitsubishi, distinguishing from assumption to belief, military grade business growth. Many things you have discussed in such an interesting manner. So please accept my heartfelt thanks for coming to this session. And let me now invite Mr. Anil Jain for the concluding remarks. Thank you, Dr. Amita. It was excellent presentation, Vinayji, from your side. My role, as Dr. Amita is saying, is basically to conclude it, but I'm sure that all the listeners present here must agree with me that Vinayji has not only presented, but he concluded also himself so very well at the end that there is nothing, which is left for us. Initially, Dr. Amita said that there will be some space left for question and answer, but I think it was so simple, so simplistically explained everything. It does not leave any space for any question, I think. Right? वो side में पूछते रहे, हम लोग बताते रहे. It was really very good. और अब initially when I read this, that military engine, I was little thinking, okay, what about military engine in business? But now I understand, and everybody should understand, that reliability he's treating as military engine. That is something very good, and we liked it. And one more thing, in order to achieve success, what he said that we have to go out of comfort zone, which is very important. That should be our takeaway, that we have to go out of our comfort zone, and open mind should be kept. इन्होंने बताया कि there are 2 roadblocks that I already know this, and it doesn't apply to me. That is something which is very good, which I think we all liked. And now, from the side of Bharatiya Global MSME Forum, I should say, I must thank you for everyone to spare time. Thank you, Vinayji, for excellent presentation. Thank you, Dr. Amita, that you are explaining everything to us. And we will be coming up with these kind of things, these kind of lectures, these kind of knowledge series very often. So I only request everyone to please join and ask your friends also to join. It will be an excellent thing. And as per Vinayji is saying, we will definitely become not entrepreneur, but we'll become Dabang entrepreneur. So thank you all once again very much. Back to Dr. Amita. Now I would like to invite Mr. Jain for giving certificate of recognition to Mr. Agarwal. Yeah, I have great pleasure. It's really nice, Vinayji, to listening you, and it is all about practical, because there are something which cannot be taught. I don't want to name the schools, institutions, or colleges globally, that may be,
but there are something which can be only taught and learned at the ground level. So that is all about your experience which you have shared today. So this just as a token of recognition from the Bharatiya Global MSME Forum. So we are great pleasure to offer you this certificate of recognition to you. Thank you so much. Thank you, Jain Sahab. Thank you very much. Thank you. Thank you all. So now with this, now we are closing this session. Thank you so much. Thank Thank you, you. everyone. Thank you, everyone. Bye, everybody. Have fun. Thank you.